before getting into the entire nitty gritty, I would really love to understand, do you still have time to visit Chappan and Sarafa? Not at all. Since last 3 years, since the time I started EM5, I forgot the structure of the city as well. Like whenever I go out in those areas, Now let's get on the brand side of it. For anyone hearing about EM5 or about you for the very first time, can you please give us a quick overview of what do you sell, who do you sell it to, and what does the business look like to you? so we are a fragrance brand. It's like fragrance first brand. I have this another question which is very important for me. When you go in a retail store, the thing that made me buy a perfume is the smell part. Very curious to understand. Like people can't smell perfume when they purchase something. इसमें भी दो पहलू, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में मतलब टेक्निकल आम बोलचाल की भाषा में ब्लाइंड बाय कहा जाता है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स एजेंसीज के साथ काम करते हैं, स्पेसिफिकली सीआरओ एजेंसीज एंड ऑल। तो हम लोगों ने कभी एजेंसी आज भी वी डोंट वर्क विद एनी एजेंसी। Hello, and welcome to the SaaS Up podcast. This is the Shopify app Merchants Edition Season 1. I'm your host, Yuvraj Kevte, founder at thesaasapp.com, an independent platform curating the top 10 Shopify apps in every category and helping merchants make better tooling decisions. On the show, we go behind the scenes, we talk to real operators who are building real businesses, candid conversations, no fluff, very practical lessons. This episode is powered by the good folks at BotSpace, AI Chat, and Helpdesk. Now, moving on. Our guest today is Shashank Chaure, founder of House of EM5, a D2C perfume brand. Shashank went on Shark Tank India season 4 last year and closed a deal with Aman Gupta. They've also brought on Surya Kumar Yadav, who's also well known as Sky, as an investor and a partner, positioned as a long term brand building collaboration. And also, on a personal note, I've myself purchased a couple of perfumes from EM5 back in the days. And this episode, I'm coming in more as a customer lens and also from the operator side. Shashank, welcome to the show. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I'm really excited for this one because you get into the business and you actually created this entire category around perfumes, which I think very less people were able to capture. And I personally never purchased perfume. I think 4 or 5 years back, it was either my fiance purchasing it or my dad purchasing it or someone gifting it. I think probably yours was one of those brands which I personally went ahead and purchased because of the ads that I saw. So really love the overall journey. Plus, you come from Indore, which is again a very close space. I am from MP. My uncle stays in Bhopal, nearby. So Indore has been like a very cozy memory for me. And before getting into the entire nitty gritty, I would really love to understand: do you still have time to visit Chappan and Sarafa, No, or not at are all. you just Not too? at all. Since last 3 years, since the time I started EM5, I forgot the structure of the city as well. Like whenever I go out in those areas, I figure out a lot of new things which are built in there. The road structure has been changed. तो जो रोड पहले 2 लेन की हुआ करती थी अब वो 6 लेन हो गई है। I get surprised कि ये if I am on the same road or not, I just check on the buildings around me कि if I am on the right way या गलत रास्ता तो नहीं ले लिया मैंने कुछ। But definitely a lot of City has infrastructure changed a changes. lot. Yeah, city has changed a lot in the last 3 years, and unfortunately, I didn't got a lot of time to go through that journey of how the city has evolved in the last 3 4 years. Got it. Got it. Now let's get on the brand side of it. For anyone hearing about EM5 or about you for the very first time, can you please give us a quick overview of what do you sell, who do you sell it to, and what does the business look like today? So we are a fragrance brand, as like fragrance first brand. So we not only do fragrances as like personal perfumes, but we also do candles. We also do the subcategories of personal fragrances, the roll-ons, which are alcohol-free roll-ons, and Nice. then solid perfumes as well. We were the first ones to introduce solid perfumes in India. So that was that was in the initial phase of our journey itself. So we have always been experimenting with fragrances, perfume. So the go-to thing was to the mainstream thing which is going on from the UAE side as well, and a lot of Indian brands now are doing the same thing, that they are replicating the French fragrances and selling at a cheaper price. So unfortunately, we do the same thing. I am not very proud of it. Soon we are planning to discontinue that segment, but simultaneously we are building the private line. So in the private line, we do some uh,
weird fragrances, I would say. Like Aghori, we did Bhairav, and those are like kind of polarizing fragrances, not meant for everybody. But yeah, fragrances during past 3 years of my journey in fragrances, I realized that it's way more than how we see to it. You know, it's it's not just a perfume. It's not just something which will make you smell good. It has a lot more potential. It's one of your senses. So like we have five senses, right? Right. We can listen, we can see, we can smell, we can taste, and we can touch. And every other sense has a very important value as a adds up a very important a lot of things as well, not just a value but an experience, a memory. It can change the way you think. It can change, like आप म्यूजिक सुनते हो, आप गाड़ी चलाओगे ना, इट विल डिफाइन आप गाड़ी कैसे चला रहे Right. हो, राइट? आपको कब क्या खाना है, वो आपकी बॉडी डिमांड करती है ना, आपकी इच्छाएं होती है कि बहुत अब मैं ये खाता हूँ। आप मौसम देख के डिसाइड करो कि मुझे क्या खाना है। सो राइट। आपका सेंस ऑफ टेस्ट कितनी सारी चीजों में इम्पैक्ट डाल रहा है, हम लोग कभी सोचते नहीं उस बारे में। बट सेंस ऑफ टच होता ही है, सबके साथ में होता होगा, मेरे साथ भी होता है। छोटे से बच्चा होता है, उसको भी मदर का टच समझ में आने लग जाता है सबसे पहले, राइट। राइट? तो ऑल ऑफ दिस सेंसेस बहुत इफेक्ट करते हैं, और सेंस ऑफ स्मेल को कभी उस तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं करा गया है, या वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। खाने में हमें बहुत टेस्ट मिल गए, तो हमारा अपनी अपनी पसंद बन गई, अपनी अपनी चॉइसेस बन गई। म्यूजिक में हमें काफी सारा टेस्ट मिला ही ना, वैरायटी मिली है। देन वी हैव आवर ओन चॉइसेस। हर दर्द का एक संगीत होता है, हर खुशी का एक अलग संगीत होता है, एल्गोरिथम का अलग संगीत होता है, राइट? बस ये चीज़ें फ्रेग्रेंसेस में कभी नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सब कुछ कमर्शियलाइज़ ही होता गया, और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इट जस्ट फ्लेवर्ड। ये पता है कैसा होता है? मुझे नहीं पता आप इसको लाइव करोगे या नहीं, या आपको करना है तो कर लेना, बट इट्स लाइक व्हिस्की। आप व्हिस्की पीते हो ना, you have to develop that taste within you, right? You have हाँ। to adapt to it, to enjoy it, and thereafter it's not just drinking whiskey, it becomes a ritual for you. तो मैं आपको ऑन दो को कभी नहीं बोलूंगा कि चलो युवराज भाई एक एक ड्रिंक लेते हैं, एक एक विस्की पीते हैं। मैं बोलूंगा बियर पीते हैं, चलो, या जूस पी लेते हैं ऑन दो को। पर मैंने आपको बोला चलो एक एक पैक विस्की लेके आते हैं, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं यार, ऐसा कैसे होता है? इसकी रिचुअल होता है, राइट? हम लोग बात करेंगे, दोस्त बनेंगे, फिर बोलेंगे हम बैठते हैं, विल प्लान इट, राइट? फिर उसका एक्साइटमेंट सुबह से चालू हो जाएगा कि यार शाम को ये सब बैठना है। एंड देन दैट वो हम जो बैठेंगे, दैट विल बी अ सेपरेट कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। वो एक मेमोरी बनेगी, वो एक स्पीकिंग प्रोग्राम। तो fragrances is that thing basically. Achieve fragrances which are blended, which are designed to deliver experiences. वो उस लेवल पे जाती है, to adapt to it, and then once you adapt to it, everything else is flavored waterfall, फिर सब कुछ कोल्ड ड्रिंक है। Once you adapt to that fragrance, जैसे अघोरी हो गया, that is blended on that format. So once you adapt to अघोरी, everything else is a flavored water for you thereafter. हर खुशबू आपके लिए बस एक flavored water है। अभी तक जो एब्सोल्युटली। कुछ अवेलेबल है मार्केट में, मासेस के अंदर, इवन फ्रॉम द डिजाइनर ब्रांड्स एज वेल, वो सब सिर्फ आपको सिर्फ अच्छा महकाने के लिए बना, तजुर्बा देने के लिए किसी ने कुछ डिजाइन नहीं किया। और स्टोरीज बनी भी तो क्या है, अमाल्फी कोस्ट है यार। अमाल्फी कोस्ट भाई कौन गया यार, अमाल्फी कोस्ट उसको क्या पता पैसे स्मॉल कर। आप उसको अमाल्फी कोस्ट का तजुर्बा खुशबू है या ला के दे रहे हो, 500 रुपए में बेच रहे हो, क्या मिलेगा? आप क्या उसको क्या क्या कनेक्ट करेगा बताओ? नहीं राइट। कर सकता। No, I think what you were saying about the core taste, the ritual, and also the names, I think that was one of the first thing that really stood out to me, right? जैसे आपके जो नाम है, I think one of the first thing which I purchased was Agori when it got launched. बाकी तो नहीं पता, but Agori and Chambal are the two that I tried. बहुत ही अलग परफ्यूम नोट्स है, बहुत ही अलग है। मेबी मेरे बाजू में जो लोग हैं उन्हें पसंद नहीं आया वो, बट व्हेन आई वेयर इट आई काइंड ऑफ फील कंफर्टेबल, इट्स मुझे वो अडॉप्टेड, आई काफ़ी टेल यू, इट्स सूदिंग लगा। अडॉप्टेड। आप अब वही है ना, वही विस्की वाली बात आ जाती है, हर किसी को नहीं पसंद आएगी विस्की, करेक्ट, करेक्ट। But I राइट? wanted to understand, like, these names are very different. It's not like your traditional fresh aqua perfume kind of हाँ, names, right? Why this naming style? What's the story behind the names? आई डोंट नो यार, बड़ा फैंटेसी रहता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानने का, पढ़ने का। बचपन से ही आई हैव बीन स्टडीइंग ऑल दिस थिंग्स, तो वो ऐसा रहता है ना, आपके ज़हन में रहती है ये सारी चीज़ें, आप पढ़ते रहते हो इनके बारे में। आई बिलोंग टू इंदौर। इफ यू नो, उज्जैन इज क्वाइट क्लोज टू प्लेस। अब तो बहुत पॉपुलर हो गया, लॉट ऑफ टूरिस्ट कम, बट हम लोग जब स्कूल में थे और कॉलेज में थे, हम लोग बंक मार के उज्जैन जाया करते थे आधी रात को, और वहाँ पे फिर शमशान में जाते थे,
या भैरव मंदिर के आसपास जहाँ पे अघोरी रहते हैं वहाँ पे जाते थे, उन सब चीज़ों को देखते थे, उन लोगों से बात करते थे। तो वो हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है एंड देन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, मैं और पढ़ता गया, तो वो हिस्ट्री हो गया या माइथोलॉजी हो गया, आई स्टडी ऑल दिस थिंग्स अ लॉट। तो शायद उन उस वजह से वो मतलब वो इंस्पिरेशन मुझे उस जगह से ज़्यादा आई एंड देन इवेंचुअली दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और वो कभी हमने ये सोच के नहीं बनाया था क्या बिकेगा। अगर मैं ये सोच के बनाता क्या बिकेगा तो मैं भी अमाल्फी कोस्ट का एक फ्रेग्रेंस बनाता या True. फ्रेंच नाम रखता। आप ऐसे सोचो ना, आप एक बिज़नेस कंसल्टेंट के पास में जाओ, उसको बोलो यार भाई मैं अघोरी नाम का फ्रेग्रेंस बनाने वाला हूँ व्हिच इज़ वेरी पोलराइजिंग। They will never agree to it. नोबडी आपको वो बोलेंगे कि भाई तुम बिज़नेस बर्बाद करना है तो हमारे पास क्यों आए हो? मतलब नहीं बिके। तो ये सारी चीज़ें आप लॉजिकली तो कर ही नहीं सकते हो। Right. राइट, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट देन आपको अलग ही रास्ता लेना होता है। आप यूजुअल प्रोसेसेस के दौरान आप कभी कुछ अलग तो करिए, मतलब सिंपल है ना, आपको कुछ डिफरेंशिएटर बनना है या कुछ डिफरेंस लेके आना है, देन यू कैन नॉट फॉलो द यूजुअल पाथ्स। Right. And as you rightly said, memory matters a lot, right? When it's food, if you take a name, if I say mango, you can literally राइट। get that smell, you can literally feel the taste in your mouth. Similarly, with brands, memory of the name, memory of the perfume note, memory of how the brand makes you feel when you wear हुँ, that fragrance matters a lot. And I राइट, think that's when a lot of reorders happen. That's when a lot of friend recommendation happens. एग्ज़ैक्टली। uh, when you name your brand, and again, you definitely given us the entire story, but whenever you're trying to name a brand, does the story comes first or you first name it and then you build story on top of the name? फर्स्ट द नेम कम्स, फर्स्ट द स्टोरी कम्स। First the story And comes. thereafter, we have to figure out if there is a possibility of blending a fragrance out of it as well. Because you need to, so when you have to blend a fragrance, the most important thing is the elements. Any story or any name or any inspiration which you take should contain elements. Right. By elements, I mean that for example, if you take अघोरी, तो अघोरी के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी खुशबुओं को आप कैप्चर कर सकते हो, जैसे ऐश हो गया, अर्दीनेस होगी, वुडीनेस होगी। हवन जब किया जाता है तो उसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है, इट्स नॉट नॉर्मल बर्निंग वुड, इट्स हवन सामग्री जब डलती है तो वो जो होता है, Absolutely. तो वहां से आपको एक वो अघोरी वाला एक इमेजिनेशन आता है, कुछ डेप्थ होगी उसके अंदर, एक थोड़ा सा अलग ही स्मोकी वुडी वाला एसेंस होगा, डार्कनेस होगी। तो इसके अब डार्कनेस का तो कोई स्मेल होता नहीं है ना, True. राइट, बट हवन सामग्री का होता है, ऐश का होता है, अर्दीनेस का एलिमेंट लिया जा सकता है। सो यू हैव टू कनेक्ट इट विद द एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अब भैरव की बात करें, तो भैरव के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? भैरव के एलिमेंट्स हो सकते हैं लिकर, क्योंकि भैरव मंदिर में भगवान को दारू चढ़ाई जाती है। I'll check the air. ठीक है, फिर उस मंदिर में अगरबत्ती की खुशबू, अगरबत्ती तो जलती है, सो इंसेंस इज अ स्मेल आउट देयर। देन भैरव इज अ वॉरियर गाय, भैरव इज अ वॉरियर गॉड। तो जब वॉरियर होता है तो वॉरियर, और ही इज अ वेरी ब्रूटल वॉरियर, इज नॉट अ नॉर्मल वॉरियर। वो वॉरियर है जो अपनी माँ को, मतलब काली माँ का बेटा है भैरव, और महाकाल का द्वारपाल है, और ही इज द कमांड इन, लाइक ही इज द जनरल ऑफ द आर्मी जो राक्षसों का वध करने जाती है। तो वो वॉरियर है जो कि राक्षसों का वध करके उनका खून खोपड़ी में, खप्पर में ला के अपनी माँ को देता था और खोपड़ियों की पिलाता था अपनी I माँ love it. Yeah. को, दैट ब्रूटल। तो उस वॉरियर, अगर ऐसा कोई वॉरियर होता तो वो कैसे स्मेल करता? ब्लडी, Right. ऑफ ब्लड, द स्मेल ऑफ वॉर टॉर्न लेदर, रस्टिक वाला लेदर, एकदम गंदा वाला, All raw smells. विथड्रॉ स्पिरिट। सो ये एलिमेंट है। तो ब्लेंड इंसेंस, blend the notes of the boozy notes, the whiskey rum ke notes, blend raw leather, and blend the notes of blood. This is Bhairav. Got it. So you have to bring in those elements. Sundarban, the same case. The new blend we are coming up with Matushala is the same case. Now there have been a lot of blends जिनको हम लोग नहीं कर पाए. Why? Because उनके elements नहीं पकड़ में आते. They It's replicate just well. imaginary elements. There are Right. no physical elements which can be connected to that fragrance. Got it. I want to go two steps back. हम already आ चुके हैं, business established हो गया, discuss हो गया. But I want to understand why perfumes? What made you actually choose this category? Because when you were starting a business, I mean, there are thousands of other things you could have done. हाँ, You could have built right. a 2C fashion brand.
electronic company, but what made you choose perfume? Like, इसके did you? 2 कारण थे, एक तो बड़ा एक्सीडेंटल था ये, सो आई नेवर प्लान टू स्टार्ट दिस बिज़नेस। Okay. दिस वाज़ प्योर हॉबी प्ले फॉर मी, मतलब टाइम Okay. पास होता है ना, आप फुर्सत में होते हो, "अरे चलो ये करके देख लेते हैं", तो दिस इज़ हाउ ईएमआई स्टार्टेड। इवन द नेम शायद आप आगे पूछोगे मुझसे ईएमआई इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी बताऊँगा, इसका कोई मतलब नहीं था उस समय। अच्छा। ये एक रैंडम नाम था। फिर चैट जीपीटी ने हमें बताया कि इसका मतलब हो सकता है कि दीज़ आर द 5 एलिमेंट्स जहाँ से सारी फ्रेग्रेंसेस इवॉल्व होती है। तो फिर हम लोगों को बोलने लग गए कि 5 एलिमेंट्स हैं। बट जब ये बना था तो इसका कोई मतलब नहीं था। इट वाज़ जस्ट अ नेम व्हिच साउंडेड अ लिटिल कूल एंड फंक्शनल प्रैक्टिकल समथिंग लाइक दैट, नथिंग। Got it. एंड इट वाज़ वेरी एक्सीडेंटल कि वो धीरे से बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया, हमें पता भी नहीं चला। सेकंडली, परफ्यूम्स इज़ समथिंग आई एम एसोसिएटेड विद सिंस माय चाइल्डहुड। तो मैं अगरबत्तियाँ और साबुन वगैरह कलेक्ट करता, मेरे पास में बड़े कार्टन्स होते हैं ना, बड़े-बड़े जो कार्टन्स होते हैं, वो भर-भर के अगरबत्तियाँ होती थी, क्योंकि वो सस्ती पड़ती थी। तो मैं Crazy. दिन भर अगरबत्तियाँ लगा के रखता, खुशबुओं का मुझे बड़ा शौक रहा है। तो अगेन एज़ अ हॉबी एज़ वेल आई अडॉप्टेड टू दिस ओनली। फुर्सत मिली तो गेट इंटू व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड। तो एज़ अ हॉबी एज़ वेल मैंने फ्रेग्रेंसेस को ही पकड़ा एंड इवेंचुअली वो सेल करना चालू किया आउट ऑफ नोवेयर। तो वो बिकने लग गया। धीरे से और ज़्यादा बिकने लग गया, फिर वो अपने आप ही बिज़नेस बन गया। मतलब ऑनेस्टली वो कब बिज़नेस बना हमें पता भी नहीं चला एंड वी गॉट इन्वॉल्व्ड इन देयर। That's crazy, crazy. And initially, पहले 3 से 6 महीने में, what is the hardest or toughest part? It was finding out the right product to sell, right fit, product market fit, yeah, finding out customers who trust you and can try your product because it's a new one. यार आई बिलीव ऐसा कुछ चैलेंज, मतलब आई 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 डिडंट सी एनी ऑफ दिस एज़ अ चैलेंज, दिस इज़ अ प्रोसेस जो हर किसी को फॉलो करना होता है। हमारे लिए कभी ये चैलेंज, मैंने इसको चैलेंज की नज़र से नहीं देखा। चैलेंजेस तो आज भी हैं, कल भी होंगे, कल भी थे। चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। मतलब मैं तो सिंपल बोलता हूँ, अगर आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हैं और आप बोर हो गए हैं खुशियों से, तो एक टी2सी ब्रांच इफ यू आर Okay. हैप्पी एंड यू आर अर्निंग वेल, इफ यू आर ऑल अदर बिजनेसेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में और आपको बड़ी बोरियत हो रही है कि इतना सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है यार, मुझे एक्शन चाहिए, मुझे एडवेंचर चाहिए लाइफ में, मुझे स्ट्रेस। फ्रेश चाहिए थोड़ा. हाँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, मुझे कभी स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी नींद बहुत अच्छी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो आप एक डी2सी बिजनेस चालू करो। You won't believe, like, अभी मैंने सुलह बमर के जो फाउंडर है और उनसे भी. अगर फिर भी कुछ कमी रह जाए तो एक इन्वेस्टर ऑन बोर्ड कर लेना। Yeah, that's the cherry on the top. Sule actually had something similar to say. He's हम्म, like the worst thing to do in India today is starting a D2C brand. आपके दिन का चैन और रातों की नींद सारी उड़ जाती है. सारा वो लेके जाता बाहर से बहुत रोज़ी दिखता है, द है। वैल्यूएशन, बिल्कुल रोजी इन्वेस्टर्स, नहीं, सेल्स नथिंग नथिंग नंबर्स. नथिंग नथिंग इज रोजी आउट हियर, नथिंग इज रोजी। Awesome. I have this another question which is very important for me because whenever my goes wife goes out to shopping, वो अपना घूमते रहती है. I keep on going to the sections जहाँ पे वॉचेस है, जीन्स है, टी-शर्ट्स हम्म, है या मोस्टली परफ्यूम्स है. When you go in a retail store, the thing that made me buy a perfume is the smell part of it, right? I can हम्म, actually physically smell it. Very curious to understand, like, people can't smell perfume when they purchase something online, right? हम्म। देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टनिटी असाइन कि अच्छा ये कैसे स्मेल करेगा, मुझे सूट होगा या नहीं होगा, विल आई स्मेल गुड इनटू इट. हाउ डू यू रिमूव दैट अनसर्टनिटी व्हेन समवन इज ट्राइंग टू बाय परफ्यूम ऑनलाइन? इसमें भी दो पहलू हैं। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, या मतलब टेक्निकल नहीं, आम बोलचाल की भाषा में ब्लाइंड बाय कहा जाता है। कि इफ यू आर ओके. ब्लाइंड बाइंग अ फ्रेग्रेंस, मतलब यू डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू स्मेल बट स्टिल यू बॉट इट। तो ब्लाइंड बाइंग ऐसे देखा जाए तो कहीं न कहीं हमेशा से रहा है। वो क्यों रहा है कि जब आप स्मेल करते हो ना कहीं पे परफ्यूम, तो बहुत सारी चीज़ें आपके डिसीज़न को इम्पैक्ट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई बड़े डिज़ाइनर ब्रांड का पेरिस के मेड बाय लुई विटॉन और समथिंग, आपने उसके शोरूम में जाके जब उसकी बॉटल उठा के जब आप उसको स्मेल करते हो, तो वो अगर न्यूट्रल स्मेल भी होगा ना, जैसे लाइक आपकी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से अगर वो ठीक-ठाक भी होगा, तो भी आप उसको ज़्यादा एप्रिशिएट करोगे बिकॉज़ इट्स अ लुई विटॉन फ्रेग्रेंस, यू आर स्टैंडिंग इन द शोरूम। तो एक वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। जबकि आपको वो सही मायने में पसंद आ रहा ही नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको उसको कम से कम 2-3 दिन तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, या एटलीस्ट 2 टू 3 एप्लीकेशंस देनी पड़ेगी, तब आपको वो समझ में आएगा हाउ इट्स गोइंग विथ यू, राइट. राइट?
तो ये तो ट्रैप हमेशा रहा है। कई बार ऐसा होता है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंज्यूमर सेइंग दिस थिंग कि मुझे वहाँ पे अलग स्मेल आ रही थी, मुझे अच्छा लगा, मैंने बाय कर लिया। मैं जब घर लेके आया हूँ या जब मैंने इसको इस्तेमाल करना चालू किया, जब मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट दैट फ्रेग्रेंस। गॉट इट। तो उस समय का जो ऑरा होता है, उस समय का जो माहौल होता है, या तो उसके जो टॉप नोट्स होते हैं जिस समय आप अप्लाई कर रहे हो, या उस समय आपका मूड क्या है। इफ यू आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स कि यार मुझे तो टॉम फोर्ड का फ्रेग्रेंस लेना है, सो गेट इन द टॉम फोर्ड शोरूम। द वे दे विल पिच यू एंड द ऑरा ऑफ टॉम फोर्ड एज अ ब्रांड, वो आपको कन्विंस कर लेगा टू बाय दैट फ्रेग्रेंस। बट अगर अपने घर पे आओगे, बाइक निकालोगे और कहीं ऑफिस जाने का स्ट्रेस में आप वो लगाओगे, बोलोगे भाई क्या है यार, ये 16,000 रुपए की चीज लगा के दिया, मजा नहीं आ रहा। तो एक वो कलेश होता ही होता है, वो बहुत लोगों का आपको मिल जाएगा। दूसरा, ब्लाइंड बाइंग, इट्स मोर ऑफ एन एक्साइटमेंट। पीपल लव दैट रिस्क, पीपल लव दैट एक्साइटमेंट, दैट क्यूरियोसिटी कि क्या आने वाला है, क्या खरीदा है मैंने, हाउ इट्स गोइंग टू स्मेल, एंड देन दे विल गिव इट सम टाइम एज वेल टू अडॉप्ट टू इट कि मुझे वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो परफ्यूम सारे अच्छे होते हैं। तो द ट्रेंड नोज दिस, पीपल हु आर यूज्ड टू वेयरिंग परफ्यूम्स, दे नो, फॉर देम एवरी फ्रेग्रेंस इज अ गुड फ्रेग्रेंस। इट्स जस्ट हर फ्रेग्रेंस का अपना एक समय है, हर फ्रेग्रेंस का अपना एक तरीका है, और अपना एक मूड है उसको एन्जॉय करने का या उसको लगाने का। गॉट इट। कोई फ्रेग्रेंस किसी को अगर लेदर नहीं पसंद है, तो उसको बारिश में या ठंड के समय पे उसको इस्तेमाल करना उसको उस दिन पसंद आएगा। ओके। किसी को फ्रेश एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है, तो उसको भरी गर्मी में उसको इस्तेमाल करना उस दिन उसको पसंद आएगा। सो देयर इज़ अ सेपरेट टाइम, अ मूड। हर खुशबू अच्छी खुशबू होती राइट। है, राइट? एवरी फ्रेग्रेंस इज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस। इट्स जस्ट देयर इज़ अ सेपरेट डिफरेंट टाइम, एंड देन देयर इज़ अ पर्सनल ओपिनियन एज़ वेल। आपको शायद पसंद नहीं आ सकती वो फ्रेग्रेंस, किसी और के लिए अच्छी होगी। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स एजेंसीज के साथ काम करते हैं, स्पेसिफिकली सीआरओ एजेंसीज एंड ऑल, और वहाँ हुँ। पे एक टर्म बहुत फेमस है, डिजाइनिंग यूजर शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ और दैट स्टफ। तो अगर मैं पूछूं, लाइक आपकी साइट क्योंकि काफ़ी यूनिक है, आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, देर इज़ लाइक अ लॉन्ग स्क्रॉल, आपके इसमें लैंडिंग पेज पे देर इज़ नो स्क्रॉल एट ऑल, फर्स्ट फोल्ड पे ही आपको सब मिलता है, एंड देन यू गो इनसाइड एंड देन एवरीथिंग ओपन्स अप। हुँ। Did you do that intentionally? Was it part of the user journey experience design? And आपकी website, it is more optimized for first time buyers or it's optimized more towards repeat purchase? इट्स फॉर, सो बेसिकली हम, मतलब ऐसे बताता हूँ, हम लोगों ने कभी एजेंसी, कभी आज भी वी डोंट वर्क विद एनी एजेंसी आउट देयर। अच्छा। कभी करा ही नहीं। जब भी हमने थोड़ा बहुत भी कोशिश करी, वो बैकफायर ही किया हम लोगों के साथ में। सेकंड थिंग आई टेल यू कि आई रन अ एजेंसी, सो माय प्राइमरी बिजनेस इज इनटू ऑनलाइन मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दैट ओनली। Oh, nice. सो वी हैव बीन डूइंग दैट सिंस 2009। तो मेरा प्राइमरी बिजनेस वही है, मतलब आई स्टिल अर्न माय ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दैट कंपनी ओनली, and that company is into digital marketing and development and everything, and 15-16 साल हो गए हमको वही काम करते हुए, तो वी नो व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट। तो आप वहां से कह सकते हैं कि वो अब वो जहन में आ गई ये चीजें हमारे, मतलब हमें फिर बैठ के डिसाइड नहीं करना होता है वो। आप वो सहज वृत्ति बोलते हैं जिस चीज को, आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है उन चीजों को उस तरीके से करने के लिए। तो Right. वो ऑलरेडी वो आ चुका है। तो एनीथिंग व्हिच वी डू ऑनलाइन, या जो भी स्ट्रेटजीज हम लोग लगाते हैं इन आवर एड्स एज वेल, एड कैंपेन्स रन करना होता है या एनीथिंग, वो सब उसी तरीके से होता है जो हमने सीखा है पिछले 16 साल के दौरान कि क्या, व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट वर्क। एंड स्ट्रेटजी की बात करो तो इट्स ऑलवेज कन्वर्जन फर्स्ट। वी डोंट बिलीव इन ज़्यादा माहौल बनाने वाला काम नहीं है। आप आए हो, खरीदो, विल मेक योर शॉपिंग एक्सपीरियंस फ्लॉलेस, फास्ट एंड फ्लॉलेस। दैट इज आवर पर्पस। Got it. Got it. नॉट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, ये प्रोडक्ट है, इसकी जरूरी चीजें ये 5 है, दिस इज एड टू कार्ट। Right. No gimmicks, no fluff over there. नथिंग नथिंग नथिंग, वेरी ब्लंट। मतलब कोई अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे ना, सो आपको कभी भी एग्जेजरेटेड वर्ड्स नहीं मिलेंगे किसी भी फ्रेग्रेंस के लिए। देयर आर फ्रेग्रेंसेस जिसमें साफ लिखा हुआ है, आपको मतलब खोलते से ही सामने दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन लो है, इसका लास्टिंग कम है, सामने लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने नीचे नहीं लिख दिया और फिर जब कस्टमर आ रहा है, यार ये तो लास्ट नहीं कर रहा है ज्यादा, तो हम बोले देखो देखो वहाँ स्क्रॉल करोगे, फिर वो टैब ओपन करोगे, फाइन प्रिंट में पढ़ के देखो वहाँ लिखा। देखो नीचे लिखा हुआ है कि ये लो लास्टिंग है। हमने तो पहले ही बोल दिया था, नहीं, आपको सामने दिखेगा इसका लास्टिंग कम है। तो Got एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट आउट देयर, वेरी it. ट्रांस। इफ आई लूज अ कस्टमर, आई डोंट माइंड, बिकॉज ही वाज, अगेन मतलब किसी को गलत बेचने में, यू, आप मतलब एक कस्टमर खोना तो
एक पॉजिटिव मतलब मेरे लिए बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं, आप न्यूट्रल पे बैठे हो। एक कस्टमर को गलत चीज़ बेचना या गिमिकी सेल करना आपको नेगेटिव लेके जाता है। मतलब ज़ीरो पे रहना इज़ स्टिल फाइन। नो एब्सोल्युटली। गलत चिपकाने वाला काम नहीं करना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, typically, like when people come to buy perfume, what are like the typical questions do they ask? Because I'm sure सिर्फ pricing के बारे में questions नहीं होते होंगे. लास्टिंग, कितना लास्ट करेगा? हाँ, इंडिया में कंज्यूमर को बहुत मायने रखता है कितना लास्ट करेगा। Okay. हाँ, मतलब उनके लिए लास्टिंग इज़ एवरीथिंग। सेंट प्रोफाइल सेकेंडरी है, स्मूथनेस सेकेंडरी है, एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी, लास्ट कितना करेगा ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है इंडियन कंज्यूमर। और आप देखो कि गेम प्ले भी वही है ना, मार्केटिंग गेम प्ले भी वही होता है सबका। प्राइमरी आप देखो, हाई ऑयल कंसंट्रेशन लास्ट अप टू 8 आवर्स, Right. सब जगह मिलेगा आपको, सब जगह, ये एवरी अदर, perfume. हाँ, वो सब जगह आपको मिलेगा। दे आंसर इट फर्स्ट कि ये 8 घंटे चलेगा, ये 10 घंटे चलेगा, 12 घंटे चलेगा, लास्ट ऑल डे लॉन्ग। या आप मतलब मैं अब बोलते जा रहा हूँ, आपको एड्स एड कॉपीज़ घूम रही होगी दिमाग में, लास्ट ऑल हाँ, डे लॉन्ग, हाँ, ये वो, एवरी absolutely. ब्रांड डज़ दिस थिंग। हम लोग कभी नहीं करते। Okay. वी नेवर टॉक अबाउट लास्टिंग बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपने कितना लगाया है? आपने एक स्प्रे लगा लिया और फिर आप बोलोगे कि लास्ट नहीं कर रहा है, इट डज़न्ट वर्क दैट वे। दूसरा, आप स्प्रे लगा के बाहर धूप में चले गए हो बाइक पे, तो वो लास्ट नहीं करेगा। हाउ मच यू अप्लाई मैटर्स, ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस यू अप्लाई मैटर्स। आप कॉटन की शर्ट पे लगा रहे हो, स्किन के ऊपर लगा रहे हो, पॉलिस्टर पे लगा रहे हो, वो मैटर करता है। फिर आप किस वेदर या किस किस एनवायरनमेंट में हो, ठंडे गरम वगैरह वगैरह, वो मैटर करता है। बहुत सारी चीजें में आप अगर फ्रेश एक्वेटिक प्रोफाइल्स लगा रहे हो तो दे आर एनी विच वे नॉट मेंट टू लास्ट लॉन्ग। Exactly. Short term. अगर आप वुडी लेदर टोबैको काइंड ऑफ प्रोफाइल्स लगा रहे हो, हैवी बेस प्रोफाइल्स, दे आर मेंट टू लास्ट लॉन्ग। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आउट देयर जो मायने रखता है। आप अगर स्किन को मॉइस्चराइज़ करके फिर लगा रहे हो तो आपका लास्टिंग बढ़ जाएगा, अगर आप स्किन मॉइस्चराइज़ करे बगैर लगा रहे हो तो लास्टिंग कम होगा। बट अगर आपका स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा लास्ट करेगा, किसी की स्किन ड्राई है तो कम लास्ट करेगा। Now let's move into the marketing aspect. And the reason why I'm asking is because I think a few years back I saw a wave of perfume ads and a हुँ, pattern literally showed up. A founder on camera, direct videos, no overproduction, just clarity. And I हुँ। remember this very clearly that you were the first guy I saw doing that kind of ads. Was it intentional or was it just part of your ad testing strategy? नो, नो, इट वाज़ नॉट एट टेस्टिंग, वी नेवर मतलब हमने कभी उसको स्ट्रैटेजाइज़ नहीं किया। हमें नहीं पता था कि ये चलेगा, नहीं चलेगा। No, because it worked and not just इट worked for वर्क्ड you. एंड इट वर्क्ड रियली वेल। हाँ, Every other perfume brand in some way or the other way is now following that one यस, person script. यस, यस, यस। तो आई टेल यू व्हाई इट हैपेंड। मैं आपको बिल्कुल रियल केस सिनेरियो बता रहा हूँ। हम लोगों ने फ़ोटो शूट करने के लिए कैमरामैन को बुलाया था Okay. कि हमें प्रोडक्ट का फ़ोटो शूट करना है, इमेजेस, लिस्टिंग इमेजेस वगैरह प्रिपेयर करनी है, तो अभी तक हम डिजिटल इमेजेस लगा रहे हैं, वी वांट फिजिकल इमेजेस, तो आप क्लिक करके। ही केम इन, उसने फ़ोटो वोटो शूट किया। फिर हमने उसको बोला, यार एक वीडियो भी बना दे थोड़ा-सा, यू नो Camera. एड्स लिंक करने के लिए ऐसा। तो बोले वो बहुत वैसा, बोला ऐसे थोड़ी ना बनता है वीडियो, वीडियो बनाने के लिए भी तो ये लाइट लगेगी, वो लाइट लगेगी, कैमरा अलग आता है, उसका टीम अलग आती है, आपको तो लगता है ऐसे ही बन जाता है। मेरा ईगो हिट, मैंने बोला यार इतना इतना सुना गया है रे आदमी 10,000 रुपए के लिए मुझे। मैं गाड़ी उठाई, मैं गया, एक कैमरा, बड़ी कैमरा शॉप है हमारे सिटी में। लाइट्स, कैमरा, ताम-झाम सब खरीद लिया उसने। मैंने बोला मैं ही बनाऊँगा अब तो। आई केम इन, फिर वो कैमरा-वैमरा का सीखा मैंने, उसमें समझ नहीं आ रहा, मैंने ना मोबाइल कैमरा, आई टेल यू स्टिल आई मेक वीडियोज़ फ्रॉम माय मोबाइल कैमरा। Nice. एक 1600 रुपए का लाइट खरीदा है मैंने बस वो। ऑल्दो उस समय मैंने बहुत कुछ खरीदा था, वो अभी भी वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, नेवर यूज्ड इट। बट हाँ, देन आई फिगर्ड आउट कि ये तो सिंपल काम है, दिस कैन बी डन इन दैट वे। बड़ा हाँ, सिंपल है, मोबाइल को ट्राइपॉड के ऊपर लगाओ और यू ब्रीफ अबाउट द प्रोडक्ट व्हाट यू आर सेलिंग। और मेरे दिमाग में, ज़हन में आज भी रहता है, स्टिल वी गो एजुकेशन फर्स्ट, मेरे ज़हन में हमेशा ये था कि एवरीथिंग व्हाटएवर द गिमिक इज़ गोइंग ऑन अबाउट फ्रेग्रेंसेस, लॉन्ग लास्टिंग, ये लड़कियाँ पीछे भागेगी, आप सीईओ बन जाओगे, ये लगा लो, वो लगा लो। आई वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज़ बिहाइंड व्हाट यू आर अप्लाइंग, right. देन ओनली यू कैन एन्जॉय द फ्रेग्रेंस। आप ऐसे देखो, आप और मैं व्हिस्की पीने बैठे हैं, राइट? मैंने आपके सामने एक बॉटल रखी है, हमने ग्लास भरा, हमने एक एक सिप लिया। तो कैसा लगा? आप बोलोगे अच्छा लगा है, व्हिस्की जैसा लगा है? पर मैं आपको बोलूँगा नहीं सर, ये लोलैंड व्हिस्की है। ये स्कॉटलैंड में जो लोलैंड से वहाँ से आई है, इसके अंदर देखो आपको कैरेमल के नोट्स लगेंगे। ये इस तरीके से ऐसा एज हुई है, इस वजह से ये चीज़ आ रही है। फिर जब आप नेक्स्ट सिप लोगे, आप उसको ज़्यादा एन्जॉय करोगे। Got it. और अगर आप और मैं 4 बार ऐसे बैठ गए, तो चौथी बार में तो आप मुझे समझाओगे कि शशांक देखो, आई ब्रॉट इन द न्यू स्टफ।
इसमें देखो ये चेंज आ रहा है. नाउ यू एंड मी आर हॉबिस्ट्स, यू एंड मी आर लिकर एंथुसियास्ट्स नाउ. हम लोग उसको अब एंजॉय करने लगे इन अ डिफरेंट वे. Why? Because now we started understanding what it is all about. So Right. my job was to convert normal perfume users into fragrance enthusiasts. और वो कब होगा? When you start understanding what you're applying. आपको समझ आना चाहिए bergamot, lemon और yuzu के अंदर डिफरेंस क्या है. सिर्फ सिट्रस पे कब तक चलोगे, राइट? True. या नेरोली और पेटिट ग्रीन के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों संतरे के पेड़ की चीजें हैं. एक Mhm. पत्ती में से, एक फूल में से, और ऑरेंज उसका फल है. ऑल दीज थ्री फ्रेग्रेंसेस आर डिफरेंट. अब मैं आपको जब तीनों को अलग अलग स्मेल कराऊंगा ना, आपको मजा आने लगेगा. हाउ डिफरेंट इज द ऑरेंज लीव्स, like how orange leaf is different than an orange flower is different than the orange itself. तो तीनों का अपना एक मजा है. Right. So And if I have to और break फिर it मैं आपको down, बताऊंगा कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर वो चीज मिलेगी आपको. इसमें पेटिट ग्रेन है, आप देखो टॉप टॉप पे, हाँ यार आ रहा है यार. नाउ यू गॉट इट. हाँ, नाउ वी आर प्लेइंग. right. So तो break down करना है कल तो I को जब मैं कुछ think डिटेलिंग में बनाने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा मेरे यूजर को एक अलग एक्सपीरियंस मिले. absolutely. वेटेवर का एक्सपीरियंस देता हूँ मैं, या मैं जिंजर का एक्सपीरियंस देता हूँ, या मैं एशेस का एक्सपीरियंस देता हूँ अगूरी के अंदर, या मैं बूजी नोट्स का एक्सपीरियंस देता हूँ. वो कैसे आप एंजॉय करोगे? अनलेस एंड अनटिल आई डोंट एक्सप्लेन यू द, यू नो, द स्टोरी. स्टोरी के अलावा, स्टोरी तो ब्रांड साइड का पार्ट हो गया. Right. अपन फंक्शनल साइड चले गए. Right. तो फंक्शनलिटी को जानना बहुत जरूरी है. एवरीबडी प्लेड ऑन द ब्रांड प्लेबुक, नोबडी प्लेड ऑन द फंक्शनल प्लेबुक. जैसे D2C ब्रांड्स ने फेयर एंड लवली, आप बुरे हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाए, ऐसे बढ़कर उन्होंने बोला विटामिन सी काम करता है भाई, एंटीऑक्सीडेंट है. उन्होंने बोला AHA BHA क्या होता है, ये काम करे, राइट? तो वो फंक्शनलिटी में जब गेम प्ले हुआ तो एवरीथिंग चेंज्ड. सो वी वांटेड टू प्ले ऑन द फंक्शनलिटी गेम रादर देन जस्ट द ब्रांड बिल्डिंग. Got it. So bird's eye view से I think first is raw footage style जो आप मोबाइल से शूट वो कर रहे तो हो. मजबूरी थी. But it looks very authentic. हाँ, It वो दैट doesn't इज look कि अच्छा हाँ, ओवर प्रोडक्शन किया हाँ. है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके ऐड बनाई ये है. It वैसे looks नहीं more like कि भाई देते. हाँ एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रील्स में राइट, भी आते हो ना, it comes up as an organic kind of a video. राइट, ऐड नहीं राइट. लगती, आप नीचे देखोगे एड्स है तब पता चलती है. नहीं, नहीं, नहीं. सेकेंडली आई थिंक द वे यू एक्सप्लेन इट, राइट, जैसे आपने बताया कि ये लोलैंड से आई है, इसमें Yeah. ये आपको नट्स मिलेंगे या ये टोन्स स्मेल करने को मिलेगा. सो आई थिंक दैट रियली एड्स एन इम्पैक्ट, एंड प्रॉब्ली व्हेन यू बाय ऑनलाइन जहाँ पे आपको स्मेल करने का वो ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे दीज थिंग्स रियली मैटर्स मोर. So we are not selling for you to like the fragrance. We are selling for you to experiment the fragrance. गॉट इट. मुझे नहीं पता आपको नेरोली पसंद आएगा या पेटिट ग्रीन पसंद सही है. आएगा या हाँ, ऑरेंज पसंद नो वन आएगा. कैन मैं टेल. चाहता हूँ आप तीनों के स्मेल करके उसका डिफरेंस जानो. मजा उसमें. राइट. हम 10 तरह की विस्की रखेंगे, हमको ये थोड़ी सिलेक्ट करना है कि हमें जो सबसे ज्यादा पसंद आ रही है हम उसकी बोतल खाली करके उठेंगे. हम बैठे हैं वो 10 तरह की विस्कीज को एंजॉय करने के लिए. एग्जैक्टली. That is where we come from. As like that is what I want to establish out there. You buy 10 fragrances, enjoy those fragrances. आपकी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद आ रहा है वो उसको लगा के आ रही एग्जैक्टली. है. इंडिविजुअल चॉइसेस है डेफिनेटली, जो हाँ. पसंद है शायद मुझे नहीं आएगा, और जो मुझे हाँ, मतलब if you want to impress somebody else, आप उसको बोलो भाई तू लगा यार, तुझे जो पसंद आ रहा है तू लगा. तुझे जो पसंद आ रहा है वो मैं क्यों लगा के घूमूं. एग्जैक्टली. नाउ मुझे एक चीज जाननी थी. आई टॉक टू लॉट ऑफ फाउंडर्स. सारे D2C ब्रांड्स, ई कॉमर्स लेड ब्रांड्स heavily depends on performance marketing. Is it the Same. same case with EM5 as well, या organic traction ज्यादा है? Both actually. मतलब so we know performance. अब as I said, my primary business is into digital marketing, performance marketing. हम लोग घोट के पी चुके हैं पूरा. मतलब so we know in and outs. And I tell you, I talk to a lot of founders as well. Everybody gets stuck in performance marketing only. राइट. उनका पूरा सब कुछ प्रॉफिट लॉस सब कुछ वहीं आके सिमट जाता है. मतलब बट बस वो चीज सॉल्व हो जाए तो सब चीजें सॉल्व हो जाएगी. उनकी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, या प्रॉफिटेबल होगी तो प्रॉफिट और 20% से बढ़ जाएगा. परफॉर्मेंस हम लोग कभी भी उसमें फंसे नहीं. बिकॉज हमको पहले दिन से पता था हाउ इट लुक्स लाइक, यू नो, आज कैसा होगा, कल कैसा दिखेगा और परसों कैसा होना है. आज की तारीख में हमारा मार्केटिंग स्पेंड इज 15% वाओ, एट ए MRR ऑफ समवेयर अराउंड 3.54 CR. दैट्स ग्रेट. जब हमने शुरुआत करी थी, या अभी साल भर पहले तक भी हमारा 35% था. जब हमने शुरुआत करी थी तो 55%. सो वी ऑलवेज नो हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसको क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या चीज़ें देनी है. और ये सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का गेम प्ले नहीं है.
ये कस्टमर एक्सपीरियंस का गेम प्ले भी है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आता है आपके रिपीट कस्टमर रेट से। आपका रिपीट कस्टमर रेट कब होगा? जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। सो आप डे राइट। 1 पे जब 50% परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो, उस दिन आपको ये चीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका रिपीट कस्टमर रेट एटलीस्ट 35-40% होना चाहिए। हमारा डी2सी का रिपीट कस्टमर रेट इज़ 50% प्लस, वाह! एंड दैट इज़ व्हाई वी आर एबल टू सस्टेन विद 15%, 20% ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड। राइट। अल्टीमेटली आपके कस्टमर को ही आपको सस्टेन कराना है। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हो सेल करने के लिए नहीं। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हो लोगों को ट्रायल्स कराने के लिए, कि भाई ट्राई करके तो देख एक बार, अच्छा लगेगा। फिर वो अपने आप खरीदेगा। दैट इज़ व्हाट वी राइट। वांट। मोस्ट ब्रांड्स के साथ मैंने ये एक विशियस साइकिल देखा है कि उनका एक्विजिशन कॉस्ट इटसेल्फ इज अबाउट 65 टू 70% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, और पॉसिबल मेन सस्टेन ही नहीं फनल कर वहां ब्रेक होती है कि रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते हैं उनको। खत्म हो जाएगा। नहीं, इस जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो गया उस दिन आप नया काम चालू कर लो। मतलब यू शुड स्विच बिज़नेस द डे यू रियलाइज़ कि आपका रिपीट कस्टमर नहीं है और आपका अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड 60-70% आ रहा है तो फिर कहानी, मतलब उस दिन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी कहीं न कहीं चीज़ें गड़बड़ हो गई है। आप लोगों ने ऐसे क्या फाइंड आउट किया जो आपका 50% से 15% पे आया है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का स्पेंड? देखो, रिपीट कस्टमर रेट हम लोग हमेशा से ट्रैक करके चलते हैं। राइट। क्वालिटी फर्स्ट, मतलब इट्स ऑलवेज़ अबाउट क्वालिटी फर्स्ट। सेकेंडली, एड कॉपीज़ मैटर्स, राइट? तो फॉर्च्यूनेटली वी गॉट अ क्रैक जहाँ पे मेरे एड्स ने अच्छा परफ़ॉर्म करना चालू किया। तो ये हर किसी के साथ कहीं न कहीं एक वो फ़ेज़ आता है जहाँ पे वो 10 तरीके के एड कॉपीज़ ट्राई करता है एंड देन वन ऑफ दैट फॉर्मेट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर देम। सो करेक्ट। दे शुड देन डबल डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, अंडरस्टैंड मेटा एंड गूगल इन एंड आउट। घोट लो उसको, पी जाओ उसको, और उसको ऐसे ट्रीट करो कि वो आपका कॉम्पिटिटर है, ना कि आपका पार्टनर। कभी उनकी मत सुनो, हमेशा अपनी चलाओ। द डे यू स्टार्ट फॉलोइंग मेटा एंड गूगल, इट्स नाउ यू आर डूइंग देयर बिज़नेस, नॉट योर बिज़नेस। यप। तो आपको अगेन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजी रादर देन टेक्निकलिटीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेटा ऑपरेट्स एंड देन यू हैव टू प्ले द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, कि वो आपके लिए काम करे ना कि आप उसके लिए काम करो। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने तो इतनी सारी गलतियां करते हुए देखा है फाउंडर्स को। मैं कुछ कंसल्ट भी करता हूँ, मतलब दोस्त यार हैं तो वो पूछते रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके लोग सीख के आए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन से या अपने पुरानी कंपनी से, या तजुर्बे से सीख के आए, और जो चीज़ें गलत है, बहुत छोटी-सी चीज़ बताता हूँ मैं। हम लोग कभी भी कॉस्ट पर एक्विजिशन को टैप नहीं करते। ओके। हमारा फ्री ऐड चलता है। हम लोग ओपन छोड़ते हैं उसको। वी लेट मेटा डिसाइड हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन के साथ। अच्छा। हम लोग हमेशा बजट पे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। गॉट इट। कई लोग कॉस्ट पर एक्विजिशन पे ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि मैं ₹300 दे सकता हूँ एक एक्विजिशन के लिए, वो वहाँ पे उसका कैप लगाएगा। हम लोग राइट। उसको ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो एज़ लाइक नल छोड़ते हैं, एक्स। हम लोग बजट के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करते हैं कैम्पेन्स को हमेशा। फिर एट्रिब्यूशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पढ़ते ही नहीं, एट्रिब्यूशन ही नहीं पता होता है, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, ट्रिपल एट्रिब्यूशन, कंबाइन। तो करेक्ट। एट्रिब्यूशन के अंदर मेटा प्लेज़, वो तो गूगल की सेल भी अपनी सेल में ही काउंट कर लेता है। हाँ। तो एट्रिब्यूशन, एट्रिब्यूशन ही हर जगह चलता है। शॉपिफाई जैसे, आई बिलीव यू आर शॉपिफाई फर्स्ट, राइट? मतलब आपका चैनल। सो ट्रिपल व्हेल इज़ वन ऑफ द टूल, सेकंड इज़ हाइबिस। Anybody who is running performance Hmm. marketing on Meta or Google with Shopify, Triple Whale is meant for Shopify only. They build it for Shopify only. Track your attribution results. वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि सेट कॉपी से कितना कन्वर्जन आया है। मेटा ट्रिपल एट्रीब्यूशन पे काम करेगा। वो आपकी एड कॉपी से अगर फर्स्ट क्लिक आया है और किसी दूसरी एड कॉपी से लास्ट क्लिक आया है जहां से कन्वर्जन हुआ है, वो दोनों एड कॉपीज को एक एक क्रेडिट देगा। Got it. राइट, नाउ इट्स अप टू यू, आपकी स्ट्रेटजी कि आपको उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। फर्स्ट क्लिक भी मायने रख रहा है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजें। हाँ, मैं कभी टॉप बॉटम पे चलता ही नहीं। मैंने आज तक मेरा टॉप बॉटम नहीं देखा है। अच्छा। ना, मैं किसी और का भी नहीं देखता। हमारी कंपनी में नोबडी गेट्स इनटू टॉप बॉटम अनलेस एंड अंटिल इट्स अ ब्रांड कैंपेन। बट इफ इट्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर तो ब्रांड कैंपेन का सवाल ही नहीं। राइट। तो व्हेन यू आर वर्किंग, लाइक व्हेन यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर कन्वर्जन, टॉप बॉटम मायने नहीं रखते। फर्स्ट क्लिक पे भी कन्वर्जन आता है और 11 क्लिक्स के बाद में भी कन्वर्जन नहीं आता है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे फोकस करते हैं या यू आल्सो वर्क विद क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स? नो, नॉट एट ऑल। Not at all. It's like your own ads and running through Google and Meta, that's it. If ऑर्गेनिक I have to ask you ऑर्गेनिकली पोस्ट कर देता है कोई तो दैट इज डिफरेंट, बट या वी organically, yeah, yeah, कमर्शियली नेवर नेवर वी नेवर गेट इनटू कमर्शियल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या क्रिएटर लेड कंटेंट, वैसा कुछ नहीं करते हम लोग। got it.
और कैक की अगर मैं बात करूँ, ये कैटेगरी के लिए व्हाट डू यू थिंक इज़ लाइक अ गुड कैक? गुड कैक डिपेंड्स ऑन योर ग्रॉस मार्जिन। व्हाट इज अ गुड कैक वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एज वेल, कि वो कितने ग्रॉस मार्जिन के ऊपर काम कर रहा है। बट एक स्टैंडर्ड थंब रूल की अगर अपन चलेंगे, 35% ऑफ योर sale price, I believe, should be the highest you should spend on your CAC. As a, like, so for example, if you're selling it for 1000 rupees, then 35 350 rupees is the maximum which you should spend in the initial phase of your business, while you are building your customer base and while you are getting the visibility out there. Although ये difficult हो जाता है शुरू शुरू में, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, 450 500 के आसपास हो जाता है फॉर 1000 रुपी प्रोडक्ट। बट हाँ, उसको जितना जल्दी हो सके 350 पे ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप, क्योंकि अगर मैं बेसिक थंब रूल लेके चलूँ तो मोटा-मोटा हर बिज़नेस 75-80% ग्रॉस मार्जिन पे काम करता है। जब आप मैथ्स लगाओगे ना 35% मार्केटिंग का, और अगर आप 18% जीएसटी, 10% का शिपिंग कॉस्ट, ये मैं डी2सी पे बात कर रहा हूँ। यही 10% शिपिंग कॉस्ट 21 से 28% हो जाता है व्हेन यू गेट इनटू मार्केट प्लेसेस। तो अल्टीमेटली यस। 5% ही बचेगा आपके हाथ में। और हुँ, वो 5% आपका होता नहीं है, क्योंकि वो आर-एन-डी एक्सपेरिमेंट्स में कहीं न कहीं आप गलतियाँ करते हो। तो 35 इज़ द हाईएस्ट यू कैन गो, आपका सस्टेनेबल बिज़नेस चलने लग जाए। तो जितना जल्दी हो सके 35% पे लेके आओ, एंड देन आपका रिपीट कस्टमर रेट जब अच्छा होगा, तो फिर आप 35 से और पीछे आने लग जाओगे। तो आपका जब 2 साल 3 साल के दौरान 1 लाख 2 लाख कस्टमर्स का बेस बन चुका है, और एक मार्केट में विजिबिलिटी आ चुकी है, एक वर्ड ऑफ माउथ ऑलरेडी स्प्रेड हो रहा है, तो फिर कस्टमर्स को कन्विंस करना ईज़ी हो जाता है। पुराने कस्टमर्स जब रिपीट बाय करते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो फिर आपकी उसमें एड कॉस्ट तो बहुत ही कम लगती है। सिर्फ़ एक रीटारगेटिंग का लग रहा है, या तो फिर वो भी नहीं होता है। तो वो 35 कट के 20 आ जाता है। करेक्ट। अच्छा, वो एक अपने आप होगा, ये सब चीज़ें अपने आप होती ऑटोमैटिकली होगा। हैं। हाँ, ओवन कोई ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डू इट राइट फ्रॉम डे वन। मतलब अगर आपने मसाला अच्छा बनाया है ना, तो आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। बनेगी। हाँ, वो आपको पहले दिन से डिसाइड करना है मसाला कहाँ से खरीदा है, हल्दी कहाँ से आई है, गरम मसाला कहाँ से आया है। मैरिनेशन अच्छा हुआ है तो चिकन अच्छा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Great analogy, and I'm sure a lot of brands will, you know, connect हाँ, with it. जस्ट फॉलो द प्रोसेस। डे 1 से आप सही चीज़ें करो, एंड जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जस्ट गो विद द विंड्स, गो विद द फ्लो। सारी चीज़ें अपने आप, आपको अपने आप ही 15-20% के कैक पे आ जाओगे आप। फिर बहुत सारे स्मॉलर ब्रांड्स ना मैंने देखा है ये भी करते हैं, जैसे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है। हुँ। वो लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं उनके कॉम्पिटिटर किस टाइप के एड्स रन कर रहे हैं, और वो लोग देखते हैं कि अच्छा कौन-सा एड बहुत पहले से स्टार्ट है, हाँ, क्योंकि और अगर आपने कोई एड बहुत सारा है पहले वो से भी चल वैसे रहा यही है चला तो देते अच्छा हैं कि होगा। उसके लिए चलेगा तो मेरे लिए भी चलेगा। ये सब हाँ, हो गए, काम खत्म हो गए ये सब। बट डज़ दैट एक्चुअली वर्क? आ गया चला गया, नहीं। ये सब रील्स बनाने के काम आती है चीज़ें। वो जिसकी रील, जिसने रील बनाई है उस पे व्यू आ गया है बस। ये जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है इसमें। ये वो है 100 तरीके पैसा कमाने के 100 तरीके, तो जिसने किताब लिखी है उसी ने पैसा कमाया है। हाँ, सारे कोचेस कंसल्टेंट्स के साथ यही होता है। यही बस, बस, बस। ये स्ट्रेटेजीज़ कहीं काम नहीं करती। और ऑनेस्टली बताऊँ, व्हेन यू गेट आउट ऑफ ऑल these थिंग्स ना, जो आपको रील्स में और इधर-उधर जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स और ये सारा ज्ञान देते हैं, सही भी होते वो होंगे आई एम श्योर। बट मैं पर्सनली तो कभी नहीं जाता हूँ, क्या मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता नहीं हूँ इन होता। सब, मैं देखता भी नहीं हूँ कौन क्या ज्ञान दे रहा है। अपने कंसाइन से चलो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, और अपना नॉलेज रखो, खुद पढ़ाई करो, और स्टैंडर्ड पढ़ाई करो। मेटा के खुद के कोर्सेज़ हैं, गूगल के खुद के कोर्सेज़ हैं, यूडेमी पे अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ हैं। आप बेसिक सारे सीख लो, देन स्ट्रेटेजीज़ आप अपनी बनाओ। गेट योर बेसिक्स राइट फर्स्ट। गेट योर बेसिक्स राइट, और ये बेसिक्स का ही गेम है। लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया है इसको। इंस्टीट्यूशंस ने क्योंकि जब तक मैं आपसे कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करूँगा, आप मुझे हाई पे कैसे करोगे? पे नहीं करोगे। करेक्ट। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा इसमें 36 मसाले डले हैं इस सब्जी के अंदर, तो आप उसके ₹1000 कैसे दोगे? मैं बोलूँगा मैंने तो ये एमडीएच का डाल दिया। गॉट इट। तो आपको मेरा एफर्ट नहीं दिख रहा है ना। आई नीड टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स टू चार्ज यू। राइट। ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। मेरा आज भी 70% एड्स एडवांटेज प्लस पे चलते हैं, या बी प्लस, मतलब ऑटोमेटिक। आई टेल मेटा भाई तू तेरे हिसाब से देख ले, 70% एड्स एंड दोज़ आर द वन दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ दे कन्वर्ट। परफॉर्म रियली वेल। अभी क्यों क्या दिमाग कन्वर्जन लगाओ? रेट है अपना? कन्वर्जन रेट हाँ, इट्स 3.4%, 3.4, 3.5 ऑन वेबसाइट। लाइक आउट ऑफ 100 विजिटर्स, 3 मोर देन 3 पीपल बाय। गॉट इट, कूल। नाउ लेट्स गो 1 ईयर बैक। हुँ। आई थिंक मेरे को एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, बट आई थिंक स्टार्ट ऑफ जैन या मिड ऑफ जैन में लास्ट ईयर आपका शार्क टैंक पे फीचर हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मुझे ये नहीं जानना है कि शार्क टैंक में जाने का प्रोसेस कैसे होता है, वहाँ जाने के बाद वो कैसे तो ऑर्गेनिक है, दैट इज़ ऑल आई नेचुरल थिंक ऑर्गेनिक है। एवरीवन नोज़ एंड देयर आर अदर रिसोर्सेज़। हुँ। मुझे ये जानना है कि व्हेन एन एपिसोड गेट्स एयर्ड ऑन शार्क टैंक, आई थिंक दैट्स व्हेन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कम्स, अ लॉट ऑफ
eyeball gets and बहुत सारे लोग आते हैं। हर कोई बात करता है कि ओ बहुत विजिटर्स आए, बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े, रेवेन्यू ग्रोथ इतना हुआ, इतना कन्वर्जन बढ़ा। बट कोई ये बात नहीं करता है कि शार्क टैंक पे फीचर होने के बाद मेरा क्या ब्रेक हुआ। सो आई वांट टू टॉक द अदर साइड ऑफ द बिजनेस कि अच्छी चीजें तो डेफिनेटली है, बट व्हाट ब्रेक्स? बिकॉज व्हेन ह्यूज ट्रैफिक कम्स, आई थिंक तीन चीजें बहुत कोर है एक बिजनेस के लिए। एक तो सफिशिएंट इन्वेंटरी होना। जैसे बमर के केस में व्हेन दे एयर्ड, उनको पता ही नहीं था उनका एपिसोड कब एयर होगा, और उस टाइम एयर हुआ जब उनके पास इन्वेंटरी नहीं थी। हम्म। तो उन्होंने फेक इन्वेंटरी अपलोड की एंड बहुत लेट कस्टमर्स को ऑर्डर गए। सो हैविंग अ गुड इन्वेंटरी, सेकंड हैविंग अ गुड लॉजिस्टिक और शिपिंग पार्टनर, एंड थर्ड हैविंग अ वेरी गुड कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स जाएंगे बल्क में, क्वेरीज बढ़ेगी, टिकट्स बढ़ेगी। व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विथ यू गाइस व्हेन यू एयर्ड ऑन शार्क टैंक? फॉर्चुनेटली हम लोगों के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी ऑलरेडी न्यू कि कब एयर होने वाला है। तो आई एम श्योर बाकियों के आई एम नॉट श्योर बमर को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, बट आउट ऑफ दिस सिनारियो ओनली शार्क टैंक की टीम आपको कम से कम 1 महीने पहले टेंटेटिव डेट्स दे देती है, और 1 हफ्ते पहले आपके पास में एग्जैक्ट डेट और टाइम आ जाता है कि आप कब एयर होने वाले हो। सो ओके। टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो आपने अभी बताई है, दोस थिंग्स कैन बी प्री प्लान। तो हमारे साथ में वही केस हुआ था, सो वी वर वेल प्लान फॉर दिस थिंग। दूसरा ये तो आपने, इसका मैं अदर साइड बताता हूँ आपको, जो शायद ज्यादा लोग आपको नहीं बताएंगे। इसका अदर साइड ये होता है कि कई बार सेल्स नहीं भी आती है, इज इट? हाँ, और आपकी इन्वेंटरी रखी रह जाती है। आपके साथ हुआ है ये? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ ऐसे हुआ है कि आपके एसक्यूज नहीं फटते हैं ना। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एसक्यूज आर सेलिंग एंड व्हाट नॉट। एग्जैक्टली, हाँ। इफ यू आर केटरिंग टू लेट्स से 50 डिफरेंट एसक्यूज, अब उसमें से कौन सा कितना बिकने वाला है ये तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते दैट ना। यू कैन प्रेडिक्ट। या यू गो डीपर डाउन देयर कि चलो शार्क टैंक ऑडियंस क्या है, क्या एज ग्रुप के लोग देखते हैं उसको, एंड देन वो क्या खरीदना चाहेंगे। तो फैमिली ज़्यादा देख रही है या जेंजी ज़्यादा देख रहा है, और मेरे पास में क्या एसक्यू है जो जेंजी ज़्यादा खरीदेगा, या किस प्राइस पॉइंट तक कौन सा कस्टमर क्या अफोर्ड करेगा। तो मेरे हाई प्राइस पॉइंट वाले एसक्यूज ज़्यादा बिकेंगे, लो प्राइस वाले ज़्यादा बिकेंगे। मैं अपनी इन्वेंटरी को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करूँ, बट वो टेक्निकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता उस साइज के बिजनेस की शार्क टैंक में जा रहा है। राइट। तो कई बार कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जो फटाफट बिकती है, निकल जाती है, पर उतनी ही इन्वेंट्री रखी रह जाती है। तो अगर आप 50-50 के रेशियो में देखो, क्या आपने सोचा था कि 1 लाख पीसेस मेरे बिकेंगे, आपके पास 10 एसकेयूज हैं और 10-10 हज़ार पीसेस आपने सबके रखे हैं। तो क्रेजी। 5 एसकेयूज के 50,000 पीस बिक चुके हैं, बट बाकी 5 एसकेयूज के 25,000 ही बिके। आपके पास 25,000 की इन्वेंट्री रखी है और शार्क टैंक का बज़ आया था और चला जा चुका है। अब आप 5% के बिज़नेस मार्जिन पे 25% ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखे हो एट कॉस्ट। राइट। अब आप फिगर आउट करो कैसे करना है, क्योंकि जब आप घर के बाहर निकलोगे तो लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे कि भाई आप शार्क टैंक में आए। आप उसको बता भी नहीं सकते हो कि भाई अभी एक बहुत सारी इन्वेंटरी बची है, पैसा फंसा हुआ नहीं है। ली, उसको मैंने ऐसा तीखा किया, उसको रखा और बैठ गया उसके ऊपर। फेशियल एक्सप्रेशंस तो मुस्कुरानी ही है आपको। No, exactly. देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एंड डार्क फैक्ट्स एज़ वेल बिहाइंड शार्क टैंक। तो दिस इज़ वन ऑफ इट कि इन्वेंटरी फँसती भी है बहुत ज़्यादा। गॉट इट। और ऑर्डर स्पाइक्स के साथ सपोर्ट टिकट स्पाइक्स भी हुए रहेंगे? नॉर्मल होता है, वो एक सेट परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के रेशियो के हिसाब से चलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका रेशियो 1% का है कि आउट ऑफ 100 ऑर्डर्स एक ऑर्डर आपका फंस रहा है, या डिलीवरी के एंड से या कहीं से भी, तो आपके 1000 ऑर्डर होंगे तो 10 ऑर्डर फंस जाएंगे। तो वो उसी रेशियो में गॉट इट। मतलब वो तो खैर वो तो वॉर पीरियड है। मतलब शार्क टैंक आपका एयर हुआ है, उसके 3 दिन 4 दिन फेज तो आपका वॉर फेज। अच्छा। मतलब ओ- आपको ओ- 8 घंटे की जगह ड्रामा। 4 घंटे हर किसी को काम करना है, एंड एवरीबॉडी इज मेंटली प्रिपेयर्ड, एवरीबॉडी इज एंथुसियास्टिक अबाउट इट। प्रॉब्लम नहीं होती, फन है। आपकी टीम भी आपकी सपोर्ट टीम है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 लोग हैं सपोर्ट के तो आपको 4 रखने हैं। वो 2 लोग बहुत खुशी से 16 घंटे काम करते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द टीम, राइट? वो खुशी से 16 घंटे काम करेंगे एंड दे विल गेट द जॉब डन। आपकी पैकेजिंग डिस्पैच की टीम होगी, वो खुशी से संडे को भी काम करेगी, ओवरटाइम भी करेगी। दे आर आल्सो मोटिवेटेड कि हमारी कंपनी शार्क टैंक पे आई है। तो एक एनर्जी होती है उस समय की, और वो एनर्जी हेल्प करती है टू डील थ्रू व्हाटएवर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स कम्स इन। Got it. On this note, I would love to give a quick shout out to our sponsors, which is BotSpace, AI Chat, and Helpdesk. We all know that most shoppers don't buy on the very first visit. They usually come to your website 5 to 6 times. In between those visits, they have ton of questions, they have abandoned carts, and they just leave. BotSpace AI agent answers questions on your website and on your Instagram instantly, and then follow up via WhatsApp and automated voice calls to recover abandoned cart. It also automates support tickets and tasks, which are order updates, returns, FAQs, so that customer gets 24 into 7 help without adding workload. If you're a Shopify brand looking to increase conversions and reduce your support ticket,
try BotSpace today. More details on them on the show notes. Now, coming back to the inventory and logistic and support part. इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको आपको मतलब हाँ, जिसने फेस किया होगा वही बता पाएगा बट आई एम श्योर एवरी अदर फाउंडर माइट हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे जैसे जब आप शार्क टैंक पे जाते हो ना आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती है शार्क टैंक पे जाने के लिए राइट गिनी चुनी कंपनी होती है जो बहुत बड़ी होती है बट आप इजीली देखोगे तो कोई 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा है कोई 30 लाख का 50 लाख का 1 करोड़ का रेवेन्यू में एवरीबडी गेट्स वाओ कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप तो ये साइज होता है वहाँ पे कंपनीज का क्विक कॉमर्स के ऊपर ये हमारे सीजन पे भी हुआ था हमारे पहले भी हुआ था कि क्विक कॉमर्स आ गया था जब हम लोग लाइव हुए थे और हमारे पहले तो व्हाट दे गेट टू नो कि आप शार्क टैंक के ऊपर आने वाले हो सो वी वांट टू ऑनबोर्ड योर इनकम तो आप समझो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए के ब्रांड हो व्हेन यू गेट इनटू क्विक कॉमर्स ना उनके पीओ आते हैं 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए के अच्छा, एरी पीओस बिकॉज डार्क स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन इज वास्ट आप करेक्ट, इतनी जगह स्टोर्स में रखना है माल आपका और आप शार्क टैंक पे आने वाले हो तो ऑब्वियसली एक बuzz भी क्रिएट होगा और आपका माल भी बिका देयर इज अ चांस सब अब वो लोग क्या कर और यूजुअली कैसा होता है शार्क तो टैंक लाइव होता है अब मैं बहुत सिंपल एक चीज बता रहा हूँ जिसका ध्यान रखना चाहिए सब जनवरी के आसपास दिसंबर जनवरी में लाइव होता है मार्च में ईयर एंड होता है तो आपकी बुक्स वगैरह का ध्यान रखना होता है देयर आर टू काइंड ऑफ कंपनीज एक तो जो प्राइमरी सेल्स अपनी बुक्स में लॉक करती है कि हमने तो माल दे दिया है पीओ बेसिस के ऊपर हमारी सेल्स बुक हो गई जबकि वो सेकेंडरी हुआ नहीं अभी कस्टमर ने खरीदा नहीं उसको करेक्ट, करेक्ट, खरीदा नहीं, पड़ा हुआ है हो स्टॉक। गया कि बुक्स में दिख गया है कि मैंने बेच दिया है। यही सेम केस होता है प्लेटफॉर्म्स के साथ भी उनको भी बुक्स दिखानी होती है कि हमने कितने का माल खरीदा है हमारा रेवेन्यू कितना है तो आप सोचो अगर किसी भी एक्स नाम के कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने 100 ब्रांड से 1-1 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री खरीद ली है जनवरी या फरवरी के अंदर आउट ऑफ एनी बस फॉर एग्जांपल उस बस को ले लिया जाए कि शार्क टैंक का बस है कि राइट, आपका माल बिकेगा आप दो और आप भी एक्साइटेड होते हो कि अरे कोई कॉमर्स पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं हम तो जगह जगह बिकेंगे आप 1 करोड़ की इन्वेंट्री जैसे तैसे इकट्ठी करके आप उसको दे देते हो करेक्ट, उसने पीओ रेस कर दिया अभी आपका माल बिका नहीं है अब मार्च में क्या होता है ये फरवरी में हो गया मार्च में आपको उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी भरना है सबसे पहले तो ओके, आपने तो दे दिया है ना माल आपको हाँ, तो भरना ही है सरकार को अभी वो बिका नहीं है और पैसे आए नहीं है करेक्ट। अच्छा, तो ये लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये पैसे नहीं पे करते? ये ऑल पूरा ये क्रेडिट? आपको 45 डेज ये बोलते हैं एवरी अदर क्विक कॉमर्स वन ऑफ द क्विक कॉमर्स इज वेरी नाउ वेरी सिस्टमेटिक बाकी दो क्विक कॉमर्स तो कहीं ना कहीं अभी भी एक्सेल्स के ऊपर ही नाम ऑपरेट करते हैं हाँ नाम ले सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स का? हमें धंधा करना है उनके साथ में ओके, तो अभी एक्सेल्स पे अभी तो बहुत सिस्टम सुधर गए हैं सबके बट हाँ लास्ट ईयर तक तो सब एक्सेल्स के ऊपर चल रहे थे और वैसे चल रहा था हमें तो कितने हमें एक प्लेटफॉर्म का पैसा अगले साल मिला है वॉव! दैट्स क्रेज़ी। अगले साल तक मिलता रहा मतलब जैसे अगर 80 लाख रुपए का माल लिया उन्होंने तो 2 लाख कभी आ रहे हैं 4 लाख कभी आ रहे हैं 5 लाख तो अगले साल तक मिलता रहा आप सोचो ऐसे ब्रांड के लिए जो 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है थिन मार्जिन के ऊपर या इवन नेगेटिव के अंदर विदाउट एनी फंड रेज और समथिंग वो कंपनियां बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लिटरली हाँ, एब्सोल्युटली। धंधा बंद हो जाता है वो जीएसटी देने के पैसे नहीं होंगे उसके पास में वो एक्साइटमेंट में माल देगा पीओ बेसिस के ऊपर 45 डेज का क्रेडिट साइन करेगा 45 डेज का क्रेडिट क्या है वो आपके माल बिकने के बाद है माल क्विक कॉमर्स पे देने के बाद का नहीं है वो पीरियड ओके, माल आपने क्विक कॉमर्स पे दे दिया वहां से जब बिक चुका है उसके 45 डेज बाद में आपको वो पैसा मिलना क्रेज़ी। है तो आपने जब 1 करोड़ रुपए का माल दिया है ना अभी तक तो आप थे भी नहीं वहां पे इसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप 1 महीने बाद में उनकी एड्स टीम कॉल करेगी सर आपका 1 करोड़ का माल रखा हुआ है हमारे पास में जिसमें से सिर्फ 10 लाख का बिका है बाकी बेचने के लिए तो एड्स चलाने पड़ेंगे अच्छा, वो भी ब्रांड को ही चलाने हैं उन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म पे। ऑब्वियसली ब्रांड को ही चलाने हैं ना एड्स तो और एड इज अ डायरेक्ट रेवेन्यू टू दिस प्लेटफॉर्म्स करेक्ट, तो ये माल बिक नहीं रहा या तो हम आरटीओ कर देते हैं वापस भेज देते हैं माल आपको तब आपको भी पता है अगर आप एफएमसीजी हो मतलब फूड इंडस्ट्री में हो तो खत्म हो गया आप 6 महीने की तो शेल्फ लाइफ है 3 महीने रहेगा वो 1.5 महीने में वापस आएगा क्या करोगे उसका कहाँ बेचोगे प्रोडक्ट? क्या बेचोगे या एनीथिंग आप अगर पैकेजिंग में हो गिफ्टिंग में हो चॉकलेट्स में हो पिघल जाती है पैकेजिंग खराब हो जाती है और इतना आवन जावन के अंदर तो कोई भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग खराब हो जाता है यार करेक्ट, आधी इन्वेंट्री बचती है रीसेलेबल आधी भी नहीं बचती तो आप आरटीओ नहीं करना चाहोगे उसको फिर आपको स्टोरेज कॉस्ट लगने लग जाती है वहाँ पे एक फेज के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो स्टोरेज लेने लग जाएंगे आपसे फिर आपको एड्स भी चलाना ही है फिर उससे नहीं काम चलेगा फिर वो बोलेंगे आप एग्रेसिव डिस्काउंट चलाओ कि माल तो बेच लो जैसे तैसे करके
फिर जब ये होते-सोते आपका जब बिकेगा उसके 45 डेज़ बाद में, जब भी वो फेज़ होगा तब आपको वो पैसा मिलेगा। तो प्ले वेरी वाइसली विथ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड इन द क्विक कॉमर्स टॉपिक। जोश में आके कभी भी क्विक कॉमर्स में नहीं आना। I am in a couple of founder groups जहाँ पे हर कोई हर दूसरे तीसरे दिन होता है, अरे मुझे क्विक कॉमर्स पे कराना है, कोई कॉन्टैक्ट दे दो, मेरे मेरी इन्वेंटरी आ गई है एंड ऑल, सो आई थिंक हाँ, व्हाट यू किसी सेड से इज दुश्मनी हो तो करवा लो उसको। वेरी स्केरी सिनेरियो। हाँ, जिससे दुश्मनी हो उसको करवाओ। नहीं करना चाहिए बट यू शुड नो व्हेन एंड हाउ। हाँ, you वेरी should know the maths behind it. Yes, you should know it and then only do it. It's not, just go out there and do it wala format. Quick commerce is not that gameplay. Got it. Now मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आई थिंक इंडिया में क्रिकेट इज अ रिलीजन हाँ, and you guys have done something crazy around this by onboarding Surya Kumar Yadav as a brand ambassador and an investor. आई right. थिंक मुझे टेक्निकली याद नहीं है कि ऐसे किसी ने ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर किसी को किया है। मोस्टली लोग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं एंड देन दे मूव ऑन एंड देन कभी दूसरा चेहरा भी आता है। व्हाट यू गाइस डिड इज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, लाइक व्हाई सूर्य कुमार यादव? Why Surya Kumar Yadav? तो actually we wanted someone as in like we don't want to get into the mainstream scenario सबसे पहला तो कि एक सेलिब्रिटी फेस आ गया और वो अपनी प्रोफाइल या उसकी जो भी एक इमेज बनी है उसके बेसिस पे आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करना वो हाँ। थोड़ा गिमिक ही हो जाता है एंड दूसरा प्रॉब्लम ये होता है सेलिब्रिटीज के साथ में दे डोंट लाइक टू बी प्लेड विद देयर पर्सनालिटीज राइट। आपको चार चीजें पूछनी होती हैं उनसे कि सर ये कर सकते हैं क्या, ये बोल सकते हैं क्या, आप ऐसा बोल पाओगे क्या, या आपको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो चलेगा क्या। तो वो आपको तो वहां तक जाना ही नहीं, उनके मैनेजर से पहले मना कर देंगे नहीं नहीं ये नहीं करेगा, ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारा तो प्रोफाइल ही नहीं है ये, या ऐसे नहीं करेंगे हम, वॉट जो भी उनका है। दूसरा उन लोगों के साथ में काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब आप सर पकड़ लोगे अपना एक एड शूट के अंदर, तो आप ऐसे बैठ जाओगे कि भाई क्या हो गया मतलब। अब नॉट नॉट विद ऑल, बट हाँ ये मैंने सुना है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है सेलिब्रिटीज के साथ में, बट मैंने जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन लोगों से मैंने बहुत सुना है कि ये प्रॉब्लम्स होती है। एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो मेन स्ट्रीम रेगुलर एस्पेक्ट्स के अंदर चला है। आई वांटेड समवन जो डायनेमिक पर्सनालिटी कैरी करता हो, जो घर जैसा हो। मतलब मैं आपको फर्स्ट कन्वर्सेशन बताता हूँ। हम लोग सूर्या से मिलने गए थे सिर्फ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग द ब्रांड एंड स्टफ्स। तो जो 2 रील्स हमने पोस्ट करी ना, वो उसकी वैनिटी के अंदर शूट हुई थी आउट ऑफ सडन डिसीजन कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं। फिर वो वाले ना जिसपे आप पीछे से आके परफ्यूम हाँ, डालते हाँ, हो? वो उसकी वैनिटी के अंदर शूट हुआ था आउट ऑफ नोवेयर। मतलब ये वो बोले कि मैं कचरा सेठ बनता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ क्या। तो बोले क्या शशांक क्या? बोले बहुत तेज परफ्यूम्स है यार, ये तो बहुत तेज परफ्यूम्स है। और उसी ने प्रपोज किया था। बोले ये वैसा आ रहा है, उसकी हेरा फेरी इज फेवरेट मूवी। अच्छा। वो उसको वहाँ से याद आया, बोले अरे वो कड़क माल है वाला, बोले माल तेरा बहुत कड़क है, माल तेरा बहुत कड़क है। एंड देन वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स सेड कि यार अगर करना है तो लेट अस डू इट कड़क माल। हाँ। एंड देन वी शॉट इट देयर ओनली, उसी मोमेंट पे। तो एक इन्वॉल्वमेंट होता है ना बंदे का कि हाँ। हाउ आई एम गेटिंग इन्वॉल्व विद यू। आज सुबह मेरी बात हुई उनसे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, रैंडम स्टफ्स। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, आईपीएल की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। तो आपसे सेलिब्रिटी कभी बात नहीं करेगा, वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा आपके साथ में कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। द डे वी लॉन्च दैट वाज नॉट इवन प्लान्ड। मैं आपको अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है ये बात, मैं आपको बता दूं। वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, पूरी टीम होटल में आ गई है आज। तो मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने बोला मैं टीम के लिए कुछ भेजता हूँ जस्ट एज अ गुड लक थिंग EM5 की तरफ से। अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आज जैसे आज 7 तारीख है और 9 तारीख से वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, 2 दिन पहले वो टीम होटल में आ गई है। तो 7 तारीख को मैंने पहुंचा दिया होटल के अंदर वो सब कुछ। मैं पूछा उनसे, रात को चैट चल रही है हमारी, रात को 1 बजे। मैं बोला सर डिलीवर हो गए थे प्रोडक्ट्स? बोला हाँ हाँ डिलीवर हो गए थे, ऐसा वैसा। तो हम लोग लॉन्च प्लान होने वाला था कि अब हम लॉन्च करेंगे आपके साथ में, विल गो लाइव आउट देयर। तो वही बात चल रही थी कि आग लगा देंगे शशांक। मैंने बोला सर बिल्कुल आग लगा दूंगा। रुक अभी आग लगा दूं? मैंने लगा दो, मुझे क्या पता। ऐसी बात चल रही है, जोश में है तो लगा दो आग। दैट गाय वेंट आउट देयर टू एवरीबॉडी, बोले फोटो डाल रील में, फोटो डाल। एवरी अदर क्रिकेट प्लेयर राइट फ्रॉम अभिषेक शर्मा टू यू नेम द गाय,
उस बंदे ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे EM5 के बॉक्स के साथ में फोटो डाल दिया। विद इन ग्रेट। एन आवर वी वर लाइक द होल क्रिकेट टीम, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं तुमने क्रिकेट टीम एंडोर्स करी है क्या? ये मैंने बोला भाई साहब ये क्या? अमन का फ़ोन आ रहा है उधर से, शशांक ये क्या अपन तैयार नहीं है इसके लिए, हमारी जो कैंपेन मैनेज करती है पूरा उसका फ़ोन आ रहा है कि शशांक ये कैसे हो गया? वैसे मैंने बोला यार मैंने नहीं करा, उसने पूछा आग लगा दो, मैंने बोला लगा दो। तो ये बोला हमने पीआर की तैयारी नहीं करी, हमने इसकी तैयारी नहीं करी, वी डोंट हैव द कंटेंट रेडी विद अस, इमेजेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इट्स अनाउंस्ड। अब हो गया, अब इतने करोड़ देख लिया, हर किसी के 10 मिलियन फॉलोवर है, किसी के 20 मिलियन फॉलोवर है, लाइक ओवरऑल बल्क था वो कुछ 90 मिलियन फॉलोअर्स का सबका मिला के। क्रेजी। द प्रोफाइल्स व्हिच पोस्टेड हैज कंबाइंड 90 मिलियन फॉलोअर्स। 2 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट कर दिया, करोड़ों लोग देख चुके हैं, अब कुछ नहीं कर सकते अब। एंड एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड, मतलब so this was a problem for us, but it was a very good problem for us. हाँ, And a good everybody thing. देखो यार ऐसा भी होता है क्या, मतलब सो आप समझ रहे हैं? ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेगी किसी और के साथ। Absolutely. आपको कोई सेलिब्रिटी इतना इन्वॉल्व होके नहीं करेगा, आपसे इतना बात नहीं करेगा। सो इट वाज नॉट अबाउट व्हाट इज सूर्या या वो हमें क्या लेके आ रहा है। इट्स अबाउट द टीम। इट्स सूर्या एंड मी बिल्डिंग समथिंग। द सेम गोज विद अमन एज वेल। इट्स अमन एंड मी एंड सूर्या बिल्डिंग समथिंग। हाँ, अब जिसके पास जो होगा वो लगाएंगे। that's crazy. So आप it's not a it's not a commercial relationship. I don't get into commercial relationships here. ओके। Commercial relationship में मजा नहीं, मतलब ये मजा नहीं आता, वैल्यू नहीं आती। हुँ। This is all value stuff. No, crazy. I mean, just imagine, I mean, आप अगर अगर आपको ऐसे अदर पब्लिक वे अराउंड देखो तो जो उस दिन हुआ हाँ, उसकी कमर्शियल कॉस्ट शायद बहुत ज़्यादा है। कितनी ज्यादा है। Yeah, it's damn expensive. Exactly. So when you run behind value ना, you always get more return than commercials. Absolutely. मुझे सब लोगों ने बोला आपने अमन को 10% दे दिया इस कॉस्ट के ऊपर, ऐसे दे दिया। आई दैट टाइम आल्सो आई रैन बिहाइंड वैल्यू रादर देन कमर्शियल्स। No, बट absolutely. खत्म हो जाता है, Both पैसे is आ रहे हैं, awesome खत्म हो boat. जाए। I mean, मैंने उनके साथ काम किया है, not directly उनके साथ, but हम्म, बोट लाइफस्टाइल का जो इनिशियल मोबाइल ऐप था, वो हम्म, उस वक़्त हमारी अच्छा। कंपनी ने बनाया था, व्हेयर आई वाज़ हम्म, वर्किंग। सो हाँ, मैं ब बताता हूँ लोगों को, आई वर्क्ड ऑन अ बोट लाइफस्टाइल हाँ, प्रोजेक्ट। अब अमन और हम लोग, अमन वेंट टू दुबई विथ मी, ब्यूटी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है पर्सन, तो चल चल के देख के आते हैं, ये मतलब वी स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, मतलब रात को 2 बजे हमारा टाइम होता है बात करने का। नाइस। तो वैसा मतलब एक वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू कहाँ से लेके आओगे आप? या तो इन्वेस्टर है तो फिर आप वैसे डील कर लो, मतलब, पर वो ही इज नेवर एन नहीं आता इन्वेस्टर। है, नहीं, यू हैव टू आ ही नहीं क्रिएट दोज़ सकता। वैल्यू, दोज़ हैव टू बिल्ड कनेक्ट्स। टीम। आप जैसे जी, कंपनियां कभी एम्प्लॉयज के बूते पे नहीं बनती है, टीम नहीं, के बूते पे बनती है। टीम के बूते पे। जो बंदा सैलरी के लिए आपके साथ काम कर रहा है उसके बूते पे आप कभी कंपनी खड़ी नहीं कर पाओगे, उसके बूते पे काम होंगे सिर्फ। कहाँ होंगे? टास्क विल बी डन, प्रोसेसेस विल नेवर बी सेट, कल्चर कभी नहीं बनेगा। कल्चर टीम से बनता है। सो करेक्ट। हमने जिन लोगों के साथ में पार्टनरशिप करी है, जो भी किया, इट वाज ऑल अबाउट वैल्यू फर्स्ट, इट वाज ऑल अबाउट बिल्डिंग द टीम, और उसके रिटर्न्स हमेशा 10x मिले हमको। हुँ। व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड ओमनी चैनल कॉमर्स? बिकॉज़ काफ़ी सारे ब्रांड्स हर एक चैनल टैप कर रहे हैं। जैसे अभी आप करो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इट्स नॉट ओन्ड मार्केटिंग चैनल, राइट? हम्म। एसएमएस आपका ओन्ड है, व्हाट्सऐप ओन्ड है, ईमेल लिस्ट ओन्ड है, मोबाइल ऐप पुश नोटिफिकेशंस एंड ऑल आर ओन्ड। आपका क्या पर्सपेक्टिव है एक होलिस्टिक ओमनी चैनल कोलैबोरेशन के ऊपर? ओमनी चैनल इज लाइक सेलिंग ऑन वन चैनल ओनली। ओमनी चैनल इज सेलिंग ऑन एवरी चैनल दैट इज पॉसिबल एंड अवेलेबल। वेरी मतलब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द राइट टाइम, व्हेन एंड वेयर, बिकॉज हर चैनल का अपना एक तरीका है ऑपरेट करने का। इवन उस चैनल के अंदर हर प्लेटफॉर्म का अपना एक प्रोसेस है। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, एंड दे हैव देयर ओन ऑडियंसेस एज वेल। तो अमेजोन का ऑडियंस एंड फ्लिपकार्ट का ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट। डिफरेंट। आपको अगर 700 रुपए का परफ्यूम बेचना है, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं बेच पाओगे, आप अमेजोन पे बिल्कुल बेचोगे। आज भी हमारा फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जो डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू है, दैट इज मोर देन ट्वाइस। ओके। 2 गुना से ज्यादा, 2 गुना भी नहीं, 3 गुना से ज्यादा का डिफरेंस है वाह! अमेजोन और फ्लिपकार्ट के रेवेन्यू में, राइट? तो दोनों का ऑडियंस अलग है। जो प्रोडक्ट हमारा फ्लिपकार्ट के ऊपर बिकता है, दैट इज यूजुअली प्राइस, उसका प्राइसिंग 500 रुपए के आसपास का होता है, वो हाई सेलिंग है फ्लिपकार्ट के ऊपर। बट हाँ, अगर आपको 700 800 1000 रुपए के प्रोडक्ट बेचना है, देन अमेजोन इज द प्लेस। गॉट इट। तो ऐसा, और जबकि फ्लिपकार्ट का कैटेगरी रेवेन्यू अमेजोन से डबल होगा। अच्छा। फ्लिपकार्ट अमेजोन से 2 गुना से भी शायद, मतलब ज्यादा तो बेचता है, 100% कंफर्म है। कितना ज्यादा बेचता है वो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि शायद 2 गुना से 2 गुना तो बेचता होगा परफ्यूम्स। तो अगर फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट 1000 करोड़ करता है परफ्यूम्स में, तो सॉरी, अमेजोन 1000 करोड़ करता है, फ्लिपकार्ट 2000 करता होगा। क्रेजी नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर्स है ना, एग्जैक्ट नहीं है। तो उतने ज्यादा, वाई? बिकॉज कस्टमर वैसा है इंडिया में। इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि आप 100 रुपए की एक चीज बेचो और 1000 रुपए की एक चीज बेचो, तो 1000 रुपए का एक कस्टमर मिल गया और 100 रुपए के 10 कस्टमर मिल गए तो आप इक्वल रेवेन्यू पे आ गए, नहीं।
आप 1000 का एक ही मिलेगा बट 100 रुपए के आपको 50 मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस है बट प्राइस वॉल्यूम भी कॉन्शियस बहुत ज्यादा ऑडियंस बहुत ज्यादा है। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी आप पिछले 7 सालों में चले जाओ 2016 के बाद से, एनी न्यू कंपनी 2016 के बाद में जो कंपनी स्टेब्लिश हुई, there is no single company out there as far as my knowledge, or I know almost all the perfume companies out there जिसने 50 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है ईयरली, और उसका एसकेयू 1000 रुपए से ऊपर का है। एंड आई कैन नेम 6 राइट नाउ जिन्होंने 500 रुपए का परफ्यूम बेचा है और उन्होंने 300 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है। फॉग, सेटवेट, आपका बेलाविटा, बियर्डो, वाइल्ड स्टोन, और निकल जाएंगे दो चार। यस। पटेल नेक, पटेल नेक का नाम सुना है आपने? हाँ। हाँ, पटेल नेक, वो तो मेन स्ट्रीम में दिखता भी नहीं है, नहीं पे। भी नहीं, हाँ। क्रेजी, दे आर क्रेजी ऑफ लाइफ। तो कितने ही मिल जाएंगे आपको। अजमल एंड टाइटन स्किन आर टू एक्सेप्शन केसेस, क्योंकि अजमल के ऊपर 3 जनरेशन की लेगेसी है। वो 60-70 साल हो गए उस कंपनी को, एंड टाइटन के पीछे टाटा है और एक हाँ, क्रेडिबिलिटी है, एक क्रेडिबल। ऑफलोड प्रेजेंस है टाइटन आई के ऊपर। तो उन चीजों की वजह से दे आर एबल टू क्रॉस दैट रेवेन्यू मार्क ऑफ 50 सीआर with that high price point SKUs. उसके अलावा there is no Indian brand who is able to. We are almost reaching out to that number. अब कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। थैंक यू, थैंक यू। बट आप समझो कितना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर हाँ, यही 500 रुपए का काम कर रहा होता, मैं कब का हिट कर चुका होता। पहुंच चुके होते हैं। सो आप एक नया कैटेगरी डेवलप कर रहे हो बेसिकली इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, राइट। जो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सबके लिए। क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस बेचना, वो सारी चीजें अभी भी इंडियन कंज्यूमर को बोलते हैं कैटेगरी इवॉल्व हो गई है, बन गई है, बनी हुई है, बनी हुई है, बट उसके अंदर सेगमेंटेशन है। कैटेगरी उन लोगों की बनी हुई है जो अच्छी खुशबुएं लगाना चाहते हैं सस्ते में, जो खुशबू से तजुर्बा ढूंढना है जिनको, वेरिएशन जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, हम 10 विस्की अलग अलग रख के देखेंगे और उसको एंजॉय करने बैठे, वो ऑडियंस नहीं आया अभी। नहीं है। एक क्वार्टर लेनी है, खाली करके उठेंगे, वो वाला बहुत है। हाँ, हाँ। अच्छा, टेक स्टैक की बात कर सकते हैं? अबाउट योर वेबसाइट, व्हाट ऑल एप्स यू यूज़? हाँ, कर सकते हैं ना। ओके, अभी आपका थीम कौन-सा यूज़ करते हैं आप शॉपिफाई पे? कस्टम ही है पूरा। कस्टम थीम है, ओके। हाँ, मतलब बेस थीम होगा पीछे कोई, हाँ। बट फ्रंट एंड एवरीथिंग इज, मतलब वो इतना कस्टमाइज हो गया होगा कि अभी तो उसका रूट बचा ही नहीं होगा। फॉर श्योर। और इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एप्स अगेन, देयर आर रिव्यूज ऐप, अपसेल्स, बंडल्स, हाँ, वी सब्सक्रिप्शन। यूज लुक्स ओके। for review because Google reviews consider looks as a credible review source. तो Google शॉपिंग वगैरह के अंदर वो looks के रिव्यूज को कंसिडर कर लेता है, और गूगल अप्रूव करके रखा हुआ है, गूगल ने अप्रूव करके रखा हुआ है इस ऐप को। तो आई बिलीव हर किसी को वही ऐप यूज करना चाहिए जिसको गूगल ने। देयर आर 2-3 एप्स वी यूज लुक्स। वी रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग GoQuick लाइक 3 डेज बैक। उसके पहले हम लोग GoQuick यूज नहीं करते थे क्विक चेकआउट के लिए, हम लोग यूजुअल चेकआउट यूज करते थे। दो चार इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको। हमने जैसे शिपिंग, हर कोई चाहता है ना फास्ट चेकआउट, राइट। हमने इंटेंशनली सेकंड एड्रेस फील्ड को भी कंपलसरी करके रखा था अभी तक। अच्छा। फिर हर कोई चाहता है कि सीओडी फ्री हो जाए, और प्रीपे के ऊपर आप 10% डिस्काउंट दे देते हो। हम प्रीपे के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, हम लोग सीओडी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। वी डोंट वांट अ लॉट ऑफ सीओडीज। हमारा सीओडी परसेंटेज इज स्टिल लेस देन 15%। ओके। तीसरा, हम लोग 999 के नीचे सीओडी देते ही नहीं है। ठीक है। 999 के नीचे सीओडी नहीं है, प्रीपेड है, एंड देयर इज अ चार्ज टू इट। शिपिंग फीस भी है, शिपिंग इज आल्सो फ्री आफ्टर 999 ओनली। तो हमने एओवी के लिए बहुत ऑप्टिमाइज किया अपनी डी2सी को। गॉट इट। तो वो एक बड़ा रीजन हो जाता है कि आपका कैक कैसे ऑप्टिमाइज हो, कि अगर आप 300 रुपए के कैक पे काम कर रहे हो, तो आपका एओवी 1000 रुपए से ऊपर होना जरूरी, तभी आप 35% पे आए हो। क्योंकि अगर आप 500 रुपए की एओवी पे आ, तो भाई 150 रुपए में तो नहीं ला पाओगे कभी भी कोई कस्टमर। आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग फट चुका है उसी दिन, जिस दिन आपका एओवी 500 हो गया, तो अभी आपका गूगल कितना चार्ज करता है? यार अभी 3 दिन ही हुए हैं, अभी मेरे पास में ज़्यादा कमर्शियल्स आए नहीं उसके। बट आई बिलीव अगर कोई शॉपिफ़ाई के एडवांस वर्ज़न के ऊपर है, जहाँ पे शॉपिफ़ाई चेकआउट 0.6% चार्ज करेगा, और पेमेंट गेटवे इंडी। आपसे जो भी है यूपीआई वगैरह के अलग-अलग वेरिएशंस में चार्ज करेगा, वो क्विक इज़ नॉट एक्सपेंसिव दैट वे। क्योंकि आपका एक तो नेटिव चेकआउट से वो हट जाता है, तो 0.6% तो आपका शॉपिफ़ाई के अंदर भी लगता है। और अगर आप एडवांस में नहीं हो, उसके लोअर वर्ज़न में हो, तब तो आपको 1% चार्ज कर रहा है शॉपिफ़ाई। तब तो हाँ। एनी कि वो क्विक सस्ता हो ही जाता है उसी दिन। आपने एयरपे नहीं ट्राई किया क्या जब इवैल्यूएट कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स? एयर पे मेरे को उसमें नहीं आया, मतलब मेरे उसमें रडार नहीं में है, नहीं आया। रडार में नहीं है मेरे। वेरी स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि अभी मैं लास्ट वीक उनसे मिला, यहाँ पे हुँ, एक हुँ। डी2सी इनसाइडर का इवेंट था, और मैं भी ई-कॉम में काफ़ी साल से हूँ, लाइक राइट। लिटरली अ डेकेड आई हैव स्पेंट इन शॉपिफाई। हुँ, मैंने खुद पहली बार एयरपे का नाम सुना था, एंड देन आई ओके। स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च। उन लोगों ने आज तक कभी मार्केटिंग के ऊपर फोकस ही नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई हुँ, प्रॉब्ली
लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, उनका मोस्टली रेफरल बेस्ड है, अच्छा ये ब्रांड ने किया, फिर वो ब्रांड ने किया। ओके। बट मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जितना मैंने कंपैरिज़न उस वक़्त देखा कि दे आर चार्जिंग प्रोबब्ली द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ पर कन्वर्जन रेट परसेंटेज, एंड सेकंड उनका जो रेवेन्यू रिकन्सिलिएशन है, जैसे मैं अभी स्ट्राइप यूज़ करता हूँ, मेरे जो भी है, हुँ, तो मुझे 7 से 10 दिन तक वेट करना पड़ता है मेरे अकाउंट में पैसे आने के लिए, हुँ। बट वो इंस्टेंट करते हैं। तो अच्छा। जी, इतना ही मुझे पता है, मुझे कंपैरिज़न नहीं पता GoQuick और उनका, बट आई आई जस्ट वांटेड टू आस्क क्योंकि बहुत पेमेंट कम गेटवे लोगों को to पता see, है। GoQuick is a checkout system. It's हाँ, not a payment gateway. It's a checkout system. ओके। You have to apply a payment gateway to GoQuick as well. So in our case, it's PayU. Before this, we used अच्छा, to use अलग पेयू, तो पेयू भी तो अलग से चार्ज करेगा ना? हाँ, PayU चार्ज करेगा। बट अगेन इट्स कंसोलिडेटेड, तो ऐसा नहीं है कि GoQuick की फीस अलग है और पेमेंट गेटवे की फीस अलग है। GoQuick का PayU से टाई अप है। हाँ, सो करेक्ट। दे इंटीग्रेट देयर चेकआउट सिस्टम इन पेमेंट गेटवे, इट्स वन सर्विस, और वो उस हिसाब से ही चार्ज करते हैं। इट्स नॉट लाइक अ सेपरेट बिल। आप एक बार बैकएंड में देखना कि कितना ओवरऑल कितना आपको पर यार ऑर्डर मुझे आता लगता है उतना ही आ रहा होगा। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्यों आ जाता है। बिकॉज व्हाइल यू आर नॉट यूजिंग नेटिव है। चेकआउट, यू आर नॉट पेइंग शॉपिफाई एनीमोर। ओके। तो वहां से आपका, अगर आप एडवांस प्लान पे 0.6% तो आपका वहीं बच जाता है। हुँ, अगर आप यूपीआई की बात करो, यूपीआई एनी विच वे पेमेंट गेटवेज के लिए फ्री है। यूपीआई के ऊपर 75% से ज्यादा पेमेंट्स यूपीआई से ही होना है आपकी वेबसाइट के ऊपर। यू कैन ऑलवेज बार्गेन ऑन यूपीआई कमीशंस किसी भी पेमेंट गेटवे के साथ, जो कि लोअर रेंज के ऊपर कहीं भी 0.4 से 0.6 के बीच में आप लेके आ सकते हो। अच्छा। तो आप सोचो, आपका नेटिव ही जब 0.6% चार्ज कर रहा था फॉर चेकआउट ओनली, उसके ऊपर पेमेंट गेटवे जब 0.6 चार्ज कर रहा था, अब आपका यूपीआई 0.6 हो गया, नेटिव हट चुका है। तो हट आप चुका। 1.2 की बजाय आप 0.6 पे कर रहे हो। करेक्ट। अब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, वो कोई और चार्ज कर लेगा, कुछ कितना कर लेगा, 0.6 और कर लेगा, तो भी मैं इक्वली होगी, जबकि वो उतना चार्ज नहीं करेगा। वो 0.2 चार्ज करेगा, 0.3 चार्ज करेगा, तो 0.3 सस्ता पड़ रहा है। या तो आपको आपका नेटिव चेकआउट की फीस को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेमेंट, बट व्हेन यू स्विच योर चेकआउट सिस्टम, इफ आई स्टॉप चार्जिंग फॉर इट, दैट्स वेयर यू सेव। गॉट इट। अच्छा, आप लोग अभी व्हाट्सएप ऑटोमेशन वगैरह रन करते हैं? Not रिटेंशन much, सपोर्ट not के लिए? much, कुछ much. नहीं करते वो? We prefer talking to the customer directly. ओके, If somebody comes to us, we want to hear him. गॉट इट। Uh, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर एपिसोड टुडे। Hmm. अ, एक छोटा-सा सेगमेंट है व्हिच इज़ अ क्विक फायर राउंड। मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं। जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आती है यू कैन हाँ, ठीक है। गो अहेड एंड से इट। और कुछ गलत सलत बोल देंगे तो कट कर लेंगे फिर। Absolutely, we can do that. Okay. Uh, One thing you think you got right at the very start with the M5. Fragrances. Okay. One And like thing. the smoothness and the detailing in fragrances. Okay. Got it. Got it. One mistake you would want to warn D2C founders about. Choose your investors right. Doesn't mean mine is wrong, but well, choose the investors which let you do your business your way. Your way. Not overpower you or The not. best investor is the one who gives you only money. ये अमन ने सिखाया मुझे। Awesome. Your best performance marketing channel. Meta. Okay. One ad angle that always works for you. This one. Face to face, direct. Face to face. One lever which increases repeat rates in D2C. Quality of the product. Okay. One metric you obsess every week. I check my sales every hour. Every hour you check it. Every hour. Okay. On Which all the channels. got it. Which EM5 scent everyone should try first? Like what should be their first EM5 purchase? For men it should be Nomad. Okay. And for women it should be Nero. Nero. Got it. One very unpopular opinion about D2C in India. Should not celebrate fund raise. Crazy. I think everyone does that. We should not. That is the first sign that you are not sustaining what you're doing. Unless and until you are building SaaS, या आप टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हो, आप फैक्ट्री लगा रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे प्रोडक्ट बन के आ रहा है, Hmm. लोन ले लो यार इन्वेंट्री के ऊपर, Right. माल बेचना है। अब उतना ही भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी बाहर से पैसा चाहिए, तो कहीं कुछ गड़बड़ है भाई। Absolutely. मतलब थोड़ा Absolutely. स्लो चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है मतलब। एंड चलो ठीक है, आपका एक विजन है, उसको सेलिब्रेट मत करो। फिर ऐसा लगता है दैट वाज योर नॉट, मतलब आपका गोल ही वो था कि मुझे फंड लेना है। हाँ, आई उसी के मेट आई मेट अ गाय, वो मेरे उसने मुझे डेक प्रेजेंट किया, मुझे इम्प्रेस हो गया। मैंने बोला भाई साहब क्या डेक बनाया है यार, मैं परेशान हो गया, मेरा डेक आज तक अच्छा नहीं बन पाया, तुमने तो क्या अभी तो कंपनी चालू नहीं करी तुमने। बोला नहीं, हमने इसको आउटसोर्स किया था, हमने बनवाया। मैंने बोला कितना पैसा दिया? बोला 5 लाख रुपए। बोला ठीक है। और प्रोटोटाइप प्रोडक्ट? बोला नहीं, अभी वो बनाएंगे हम अभी।
बोला, अच्छा ठीक है, कब बनाओगे? बोले उसी के लिए फंड रेज़ करना है। अब समझ रहे हो उसके पास जो 5 लाख रुपए थे उसने वो डाले हैं प्रोडक्ट और नहीं जो भी डाले। बाकी पैसा था हाँ, वो उसने डाला है फंड रेज़ करने के लिए। प्रोडक्ट अभी नहीं आया तुम्हें। आई थिंक एवरीवन वांट्स फंड्स नाउअडेज, किसी को अपना खुद का पैसा नहीं डालना है। दे वांट और टू टेक आपको रिस्क बताऊँ ऑन दैट इज़ इन्वेस्टर्स आल्सो अ मनी। गेम प्ले, वो गलत गेम प्ले नहीं है, दैट इज़ आल्सो अ गेम प्ले बट देन मुझे नहीं पता वो गेम प्ले कितना सही है, कितना गलत है बट अगर आप फंड रेज़ पे कंपनी चला रहे हो देन यू डोंट वांट टू रन योर कंपनी ऑन प्रॉफिट्स बट ऑन मल्टीपल्स। आप ऐसे देखो, ऐसी कई सारी कंपनीज़ होगी जो 100 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठी है। कोई भी एक कंपनी उठाना, ऐसी कई सारी मिल जाएगी। अगर वो कंपनी 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठी है ना, उसने 500 करोड़ का फंड रेज़ किया होगा अभी तक, ठीक है? करेक्ट। उसके अंदर से उसने 400 करोड़ का लॉस कर दिया होगा, 100 करोड़ बचे होंगे। जो हाँ, उसका 6 महीने का रनवे वो बोलता होगा, उसको अब कहीं वो सेकंड राउंड के लिए वर्किंग कर रहा है। करेक्ट। मैं गुड सिनेरियो बता रहा हूँ ना, ये गुड सिनेरियो में आ गई ये कंपनी। आप मुझे बताओ, वो 1000 करोड़ की कंपनी या चलो मैं एक रियल एग्ज़ाम्पल देता हूँ विदाउट टेलिंग द कंपनी नेम, 300 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू है जो 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। कॉफी ब्रेक। नहीं, ठीक है ब्यूटी में ही है, वो समझ जा आप। जो कंपनी बिक जाती है 2 ढाई हज़ार करोड़ के अंदर, हाँ, उस कंपनी ने 100-200 करोड़ रुपए का जो भी एग्ज़ैक्ट सो नंबर हो वो कमाल फिगर आउट है कर ना, लेना, बट आपको वहाँ बहुत समझ छोटी में सी। आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उस कंपनी ने 100-200 करोड़ रुपए का फंड रेज़ किया हुआ था। आप सोचो वो 300 करोड़ का रेवेन्यू करके 6 करोड़ रुपए कमा के अगर उसका इन्वेस्टर बोले भाई चलो धंधा करते हैं और मुझे कमा-कमा के पहले मेरा पैसा दे दो फिर अपन साथ में कमाएँगे। हाँ, वो 150 करोड़ रुपए कमाने में कितने साल लगेंगे उसे? बहुत। आपको लग रहा है वो ये मॉडल कहीं से कहीं तो भी फिज़िबल है? कि आप मुझे 100 करोड़ दो, मैं 300 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी बनाता हूँ जो 6 करोड़ का प्रॉफिट बनाएगी और मैं आपको ग्रेजुअली आपके 100 करोड़ वापस करता जाऊँगा उसमें से। 100 करोड़ एफडी में डाल दो। ये आप समझो ना लॉजिक कहाँ बना है इसमें? ये कंपनी क्यों बनी है? ये कंपनी मल्टीपल पे खेलने के लिए बनी। राइट। ये कंपनी बनी कि एक कैटेगरी को कैप्चर करना है, वो कैटेगरी किसी ऐसी कंपनी को देना है जिसको फोमो हो गया है, क्या मैं करेक्ट। क्यों नहीं इस कैटेगरी के अंदर? और वो कंपनी इकोनॉमी। बनानी। तो ये बहुत सारा लक फैक्टर इन्वॉल्व हो गया इसके। आप बिज़नेस से अलग ही डायरेक्शन में आ गए हो। अब आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा, आपको मार्केट एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और आपको सबसे ज़्यादा तो पार्टियाँ करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, सोशल चैनल मतलब बढ़ाना होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ेगी जो आपकी ये चीज़ें करा दे। यस। बिज़नेस तो अभी थोड़ा पीछे हो गया, तो आपको ऐसी कई सारी कंपनी मिल पाएगी, मिल जाएगी। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी कंपनीज़ मतलब 80% फंडेड कंपनी इसी रेशियो में आ जाती है कि वो कंपनियाँ कभी भी कमा के अपने इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगी। कमा के पॉसिबल ही नहीं है। आपको आईपीओ लाना है, तो आप और मैं जब इन्वेस्ट करेंगे तब उनको उनका पैसा मिला मल्टीपल पे खेलना है अल्टीमेटली। बिज़नेस तो है ही नहीं। एब्सोल्युटली। इट्स ऑल अबाउट कैप्चरिंग अ कैटेगरी, डोमिनेटिंग अ कैटेगरी, किसी और का बिज़नेस खा रहा है, किसी और को फोमो में डालना है, ये सब करना है। या नई कैटेगरी जो भी करना है मतलब इट्स ऑल अबाउट समथिंग एल्स। इट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिज़नेस। अगर वो बिकी नहीं या उसको नया रेज़ नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसी कई सारी कंपनियाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं। राइट, डिपेंड्स ऑन व्हाट मॉडल यू वुड जो वांट रन टू फॉर। का जो रेवेन्यू उनका जो स्पेंड है वो उतना कमा ही नहीं पाते, भले ही प्रॉफिटेबल है। मैं बोलता हूँ चलो मैं 60 करोड़ का प्रॉफिट फाइल कर दिया बट वो प्रॉफिट मैंने जिन जगहों से निकाला है ना या 100 करोड़ का प्रॉफिट फाइल कर दिया मैंने जिन जगहों से निकाला है वो प्रॉफिट मैंने खर्चे कम करे टेक्निकली। उसमें मैंने वो भी ले लिया है कि 400 करोड़ इन्वेस्टर के तो उसका जो एफडी का जो पैसा है वो भी जोड़ लिया है। कितने लोगों ने तो एफडी में प्रॉफिट दिखाया है यार। मतलब वो जो प्रॉफिट आया है वो इन्वेस्टर के पैसे पे डेब्ट फंड में डाल के एफडी में डाल के प्रॉफिट है वही प्रॉफिट है बिज़नेस का नहीं है उसके अंदर। दैट वाज़ एक्चुअली द फर्स्ट एडवाइस। मैं एक एआई सॉल्यूशन बना रहा था कुछ साल पहले, तो दैट वाज़ द फर्स्ट एडवाइस आई गॉट, क्योंकि हमारी बात चल रही थी एंड मुझे जो हमारे एक फ्रेंड थे, ही डज़ फाइनेंशियल कंसल्टिंग, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर से जो भी पैसा आएगा उसमें से 60% का पहले एफडी बना लेना, हाँ, वही 40% कंपनी चलाना। पर आप अगर टेक्नोलॉजी बना रहे हो तो समझ आता है यार, चलो ठीक है, यू आर हाँ। बिल्डिंग समथिंग राइट? अब मैं बोलता हूँ चलो आप आर-एन-डी कर रहे हो, आप रिसर्च में हो, आप न्यू फेस क्रीम्स डेवलप कर रहे हो, आप नए मॉलिक्यूल्स के ऊपर आर-एन-डी कर रहे हो, वहाँ पे आपकी लैब है, आपके साइंटिस्ट है, आप कुछ तो ऐसा बना रहे हो जिसका एक आईपी होगा। उस आईपी के लिए या वो टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगता है, उस आईपी के लिए पैसा लगता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से माल बना के मार्केट में बेचने के लिए नहीं लगता है। मतलब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है। राइट। बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई बहुत और वो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो मिलता है, थोड़ा बहुत होता भी है, थोड़ा बहुत मिलता भी है बैंक वगैरह से। इन्वेस्टर को लाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इन्वेस्टर आ गया फिर आप मल्टीपल गेम में हो। यू आर नॉट इन अ प्रॉफिट गेम एनीमोर। आप अगर मैं सोचूँ कि मैं EM5 को 10 साल चलाऊँगा, 20 साल चलाऊँगा, नहीं चला सकता अगर मेरे पास में वैसा कोई इन्वेस्टर होता तो। या ठीक है फिर 10 साल बाद में 1 करोड़ रुपए महीना आने लग जाएगा मुझे आराम से, ऑटोमेट करके बैठेंगे, चलाएँगे, धीरे-धीरे ग्रो करते रहेंगे, बच्चों को भी दे देंगे कंपनी। बोल सकते हैं बॉस आपको 3, 4, 5 साल का गेम है। रूट करो, फटाफट बेचो, बाहर निकलो। नहीं हुआ तो फँस जाओगे। और आपका तो कुछ है ही नहीं फिर भी। आप जो
एसएचए ऐसे से साइन करोगे उसके अंदर, तो आप तो बचे ही नहीं हो, मतलब आप समझ रहे हो। हाँ, आपका वेस्टिंग वेस्टिंग ये वो, पहले तो 18% का कमिटेड रिटर्न देना है, इतना कुछ देना रहेगा पहले इन्वेस्टर्स को, तब जाके फिर आपके लिए कुछ बचेगा, अगर बचा है तो। नहीं तो यू आर जस्ट अनदर एम्प्लॉय इन योर ओन कंपनी। But this is one real crazy, raw, and true conversation. Thanks a lot, Shashank, for उसका coming on. रूट भी बता दो आपको, रूट क्या है, उसका रूट है लिंक्डइन। Ah, any consumer who's looking for good, high quality perfumes. फॉर परफ्यूम्स इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन टुवर्ड्स द परफ्यूम। हर खुशबू अच्छी खुशबू होती है, आप समझ, मतलब एवरी फ्रेग्रेंस इज अ नाइस फ्रेग्रेंस, नथिंग इज एक्सपेंसिव, नथिंग इज चीप। और लोगों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है अबाउट नेचुरल्स, नेचुरल्स आर नॉट ऑलवेज गुड। Okay. एंड एक बहुत छोटा सा, रोज एसेंशियल ऑयल इज बैंड इन यूरोप बिकॉज इट कंटेन्स 2% ऑफ इथाइल यूजिनॉल विच इज कैंसरस। सो आप प्योर रोज फ्रेग्रेंस में यूज नहीं कर सकते मोर देन अ सर्टन परसेंटेज। जबकि हमारे यहाँ पे प्योर रोज को बहुत अच्छा माना जाता है, मिलता नहीं है, बहुत महंगा है ऐसा ऐसा। इट्स ऑल्सो नॉट सेफ। यूजिनॉल अगेन, मतलब ऐसे देयर इज लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर नेचुरल व्हिच आर नॉट गुड। सिंथेटिक्स आर फार बेटर देन नेचुरल्स, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। Right. तो वो टेक्निकल तो जाएंगे तो बहुत मतलब बड़ा हो जाएगा, बट या इन अ नटशेल, नेचुरल्स आर नॉट ऑलवेज सेफ एंड synthetics are not always bad. Got it. Awesome. Thanks a lot, Shashank, for coming. Thank you so And much. quick shout out to BotSpace. If you guys are looking for a great customer support and help desk solution, BotSpace is the right company to work with. Details are in the show notes. Stay tuned to the SaaS Hub. And if you're a D2C operator, want to get better pre-vetted apps for your Shopify store, do check out the SaaShub.com. This is me, Yuvraj, signing off. Bye.